TAM as an exercise is a very extensive exercise, and there was one very successful founder who told us one day while having some discussion around the TAM, saying is ki, the way you do your TAM exercise denotes how qualified or how experienced or how mature you are as an entrepreneur, and how much clarity do you have of your business, right? And who do you want to target? And So, your customers and your also. customers, exactly. That's so Who do true. you want to target and what do you want to build? Thank you very much, Nitin, for giving us your time today. So, just a brief introduction and correct me if I'm wrong anywhere. So, Nitin is the founding member of Runner B. आपने 2016 में I think you started Runner B, right? 2015. 15. Yeah. Right. So, Runner B is what Dunzo is today. Right. So, you imagined that and built it actually, not just imagined. Right. You built it in 2015. Right. Then you became the founding member of MyHQ, which is a वहाँ हम तीनों ही काम करते थे, तो विल टॉक अबाउट दैट रिलेशनशिप. बट माई एच क्यू इज़ अ कंपनी जहाँ पे वो को वर्किंग स्पेसिस को अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, इट्स अ बेसिकली मैनेज मार्केट प्लेस. Right. सो यू टुक केयर ऑफ मार्केटिंग देयर. सो मार्केटिंग पूरा हेड किया. देन यू वेंट on to build your next startup, which is Pawan, which you're working on right now. Right. And we'll talk about that. Yes. So चलो, it will नितिन ने be एक बार डिसाइड किया था कि नौकरी नहीं करनी है, फिर अच्छा. उसके लिए सब कुछ किया लग रहा है कि नौकरी नहीं करने के लिए सब कुछ करेंगे. आपने MyHQ के बाद भी शायद you worked somewhere, right? So I did not work exactly. Basically, thought about. I was very particular that after my school I wanted to take a break. Earlier, the idea was to take a break for 3 months, but it coincided with that second wave of Corona, Right. right? And a lot of my family members were infected, so that 3 months got extended to 6 months. In that 6 months, I did a couple of consulting engagements, right, which was earlier supposed to get turn into a full-time role, but I never went that route. I just started working on Pawan just after that short stint as a consultant. Right? We'll come to other things, हम past में जाएंगे. But just मतलब how did it happen? मतलब Pawan, how did you come about this idea? That can you tell, first of all, can you tell a little bit कि Pawan है क्या? Right. And how do you stumble upon this problem? Right. So yeah, Pawan exactly is a lifestyle platform, right? And there are three things that we intend to achieve with Pawan. The first thing is, if you're facing any particular problems in life, right, be it related to health, wellness, relationship, career, self improvement, right, how can you solve those problems in the most sustainable and effective way? So that is the one problem statement that we're trying to solve at Pawan. The second thing is, if you want to upskill yourself, and not in terms of hard skills, but more in terms of soft skills, right? How do you perceive, like, how do you see yourself? How do you evaluate success? What is success for you in life, right? And in general, in terms of leadership, in terms of focus, in terms of memory, in terms of decision making. So that is the second thing that we intend to achieve. The third thing is in general well-being. If you don't have any agenda in mind, what is the right way to live life, right? And what is the right way and what are the right set of practices and habits that you should build in life that can help you achieve your potential, but at the same time also keep you happy, contented, and satisfied in life, right? So these are three problem statements that we intend to achieve with Pawan, and that is why I don't call Pawan exactly a spiritual or a religious platform. There are a lot of narratives that can be built around it, but for me it is more like a lifestyle platform, because what we intend to achieve by this is help people live life the right way, right? How are we doing this? We're doing this by reviving India's age old wisdom, science, and spiritual practices, just bifurcating it and packaging it in a way that is very pinpointed, very actionable, because there's a lot of inaccessibility and complexity in terms of the way this knowledge system or the wisdom is there out in the market, right? And which is not possible for a layman to actually understand, maybe also understand theoretically, but not actually understand what does it actually want to say, right? So there is a lot of scope, and the merit there is to just make it very simplified, actionable, and tell people, because nowadays people don't have time, right? You cannot expect them to spend a lot of time just going deep into a particular domain. They want solutions which are very quick and which are effective as well. So our belief, our thesis is that our India's the Indian knowledge system is
immense in terms of the wisdom it holds and the quality of life it says a human being should live, right? Mm. But it is being lost, and the more and more we are losing touch with it, the more and more we're getting into the complexities of technology, globalization and advancements. Mm. We have started encountering a lot of complex problems in life, and current ecosystem of society, we feel does not have answers to that, Mm. right? And that wisdom, that knowledge is there, has already been ours for ages. And if you see globally, there has been a great uptick in terms of Indic practices and Mm. Indic concepts, like spirituality, yoga, which Mm. is our concept, became yoga, Mm. dhyan became meditation, right? uh, Vrat became intermittent fasting, right? Right. And now we've started accepting it. But these practices, these knowledge systems, this wisdom has always been ours, right, for centuries. And now we have started being more comfortable in our skin as an Indian, thanks to a lot of geopolitical things happening outside, right? And we becoming more confident in our own identity. So there has already been an uptick happening globally, but eventually you can see such practices being picked up in India as well, and we can talk about in detail why is it happening now, right? And so the idea is to just lead it from the front, to build a brand, build a global brand using the wisdom and the knowledge system that has always been of India, right? And build a global brand and help people live a more balanced, fulfilling and a happy life. And that is typically what Pawan is and what we're trying to achieve. ये इस पे सवाल है, थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, हम्म, लेकिन अब जनरली जैसे हमारा यूथ है आज का, या फिर हम लास्ट 10 साल में भी देख लें, तो 10 या 20 साल में हम ये जो इंडिक प्रैक्टिसेस हम जानते हैं या हमारे बड़े बूढ़े लेट्स से अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करते थे, वो लूज़ हो गई फॉर वट एवर रीज़न, एंड वी हैव ऑल द पॉलिटिकल डिबेट्स टू डिस्कस कि वो क्यों हुआ। पर उससे हटते हैं, आपने एक शब्द बोला कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडिया बाहर जा रहा है, वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर स्किन नाउ। right. सो डू यू रियली फील कि हम अब अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं इसलिए हम ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, या इज इट दैट इट हैज़ गॉन आउट एंड इट इज़ बीइंग रीसोल्ड टू अस एंड वी वांट टू फॉलो द वेस्टर्नर, Exactly. तो दैट इज़ व्हाई वी वांट टू पिक दिस। राइट, सो यार बहुत सही पॉइंट है। एंड व्हेन आई सेड कि ग्लोबलाइजेशन वेस्ट में भी, व्हेन वी आर नॉट कंफर्टेबल इन आवर स्किन, राइट, हम इंडिया एज अ सोसाइटी वी वर स्ट्रगलिंग विद बेसिक नीड्स। इफ यू लुक इन द लास्ट 40-50 years after independence, we have always been a rich civilization, right? But because of n number of reasons, we were forced to go back 30-40 years in our lifespan as a country or as a society, right? Then we started struggling for basic needs, like basic food, money, shelter, right? But and when you are in that position, you're not confident in who you are, so you always start looking for validation in somebody who's more powerful, right? Somebody who's more advanced, somebody who feels more capable, right? And I think that is one reason why this has happened, right? वेस्ट में चीज़ें जाती थी, रीपैकेज होके आती है, नॉट जस्ट इन दिस, you'll see a lot of things Right. that goes to the west picks it up from different civilizations, just repackages it, makes it cool per se, and then because we in our society, the way we live life, we are trying to imitate the west in our lifestyle, For in our sure. thought processes and in our goals as a society or as human beings. तो वो रीपैकेज जब होके आता था, दैट वाज वन डेफिनेट yes reason why we have now started accepting it, because हमें अब पता चल गया कि ये चीज़ हम करेंगे तो हमें कोई पिछड़ा नहीं बोलेगा, हमें कोई बैकवर्ड नहीं बोलेगा, there is definitely some merit in it, and the people who are so called advanced are accepting it, so there has to be some logic behind it, right? So that is one reason, definitely a reason why it has happened. The second reason that we also have to, that we cannot ignore is कि आप देखोगे जो चीज़ की हम बात कर रहे हैं, philosophy, if you talk about spirituality, if you talk about way of life कि सही तरीका क्या है, लाइफ कैसे जीना चाहिए, एंड देर इज मोर टू लाइफ देन मनी एंड सक्सेस, राइट? अच्छा हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे कॉन्वर्सेशंस, अच्छी बॉन्डिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ओनली पॉसिबल जब आप अपने आप को और एज अ सोसाइटी आप जो आपकी बेसिक नीड्स के स्ट्रगल वो है, आप fulfilled उससे है। फुलफिल होके निकल जाते हो। Right. अगर आप बुद्धिज्म में भी देखोगे, सो
there is a concept saying कि to achieve moksha Hmm. you have to renunciate your Yeah. materialistic pleasures, right? So अगर आप जैनिज्म में भी देखोगे तो जितने भी तीर्थंकर लोग हैं जिन्होंने मोक्ष सपोजिटली पाए, सब राजा लोग रहे हैं, हम्म। सब वेल टू डू फैमिली से आए हैं, बिकॉज फॉर यू टू बी एबल टू अचीव एनलाइटमेंट डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिटैचमेंट जब तभी होता है जब आप उस फेज पे आ चुके हो एंड देन यू रियलाइज कि यार ये चीज़ तो सही थी बट इट स्टिल डज नॉट मेक जब मी कुछ हैप्पी। होगा तब छोड़ोगे ना। जब कुछ होगा तब छोड़ोगे, आज के डेट में ये कहते एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि एज अ सोसाइटी द रीजन ऑफ इंडिया बिकमिंग स्लोली ग्रोइंग एज एन इकोनॉमी बिकमिंग अ सुपर पावर, उससे क्या होता है कि जो आपकी बेसिक नीड्स आज के डेट में वो फुलफिल हो रही है लोगों की। तो जब वो फुलफिल हो जाती है लोगों की, देन पीपल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस ऑन अ मोर फिलोसॉफिकल लेवल कि यार व्हाट इज मोर टू लाइफ, हम्म। is this the success or is this the quality of life that I have always been chasing, and is this something that makes me happy, is it something that makes me sleep peacefully at night, right? So that is another reason कि combination of कि बाहर क्या हो रहा था वो भी है, and as a society भी we have developed, चाहे हम कुछ भी बोले we have definitely developed as a society and we have grown as a society। तो जब basic needs लोगों की पूरी हो जाती है तो उसके बाद people start asking more deeper questions कि भाई मेरी जिंदगी में और क्या है। क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस तो तभी आता है ना जब बिल्कुल। जिन चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, पैसे के लिए, सक्सेस के लिए, सेक्स भी बोलूँगा, मतलब इट्स एन बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल। उसमें एक्चुअली इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आल्सो, मार्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, Maslow's, मास्लोस triangle। हाँ, ट्रायंगल ऑफ नीड्स, तो हायरार्की ऑफ नीड्स उसमें वो टॉप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है। तो सबसे बेसिक लेवल तो फूड, वाटर, शेल्टर, सेक्स ही है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसको जब यू स्टार्ट क्रॉसिंग, देन यू स्टार्ट reaching self actualization. Right। You can't jump to self actualization without your security or physiological needs being met. राइट। So But- that's quite important. But ये तो मतलब इंडिया एज अ सोसाइटी की बात होगी. What I would like to understand on the same subject कि did IIT or like the environment of IIT help you in any way to come up with this idea? Because we've all heard how stressful IIT's environment is. Or like do you think that you related कि हाँ यार mental health तो काफ़ी बड़ा challenge होता है. I've seen it around me with my peers. They were very stressed. Maybe you were not, but maybe your peers were. Mhm. So you realize that it is a real problem because a lot of people still today till date do not acknowledge mental health as a big issue. But you're building a company for So it. I don't necessarily think कि IIT के समय पे definitely stressful environment होता है। अचानक से आप अपने छोटे से cocoon से बाहर निकल के world को face करने के लिए आते हो। So ये problems definitely होते हैं। But the inception of Pawan actually did not happen that, and we can get into the story because the starting point of Pawan was slightly different, and then we gradually moved towards what we're building today. So but IITs में भी, and when you talk about mental stress and anxiety issues, India as a society, the way we function, like the way human mind functions, right? हमें ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि स्ट्रेस होता है या फिर एंजाइटी है, यू नॉट फीलिंग गुड, दैट इज़ नॉट द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट सीकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, राइट? जब स्ट्रेस से आपको रात में नींद आनी बंद हो जाती है, जब आपको एंजाइटी से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, एसिड रिफ्लक्स होने लग जाते हैं, जब आपके रिलेशनशिप्स टूटने लग जाते हैं स्ट्रेस से, that is the moment when you start looking for solutions, and then analyzing the problem statement you realize that the stress was one of the core reasons why this problem happened, because stress का realization अभी भी लोगों में है नहीं कि मैं I am going through stress, but when that stress manifests into something more concrete that you can visibly see with your naked eye, that is the moment when you start looking for solutions to such problems. And stress is, I think, the root cause for n number of problems, Right. both mental and bodily problems. It is not just limited to For sure. mental or emotional problems, it is also linked to bodily problems. So I think it is very important to understand and also educate and create awareness around the topic, not just saying कि mental health important है, stress is not a state that you should be in, but it is also important to educate people कि what all of these smaller problems that you might feel it's very trivial right now, it is not impacting my day-to-day life, but what can it actually lead to, that is very important. The moment you start creating awareness and start educating people about the outcome or the end result of these smaller issues, and I think that is
the place, or that is the stage when people will start becoming more open to it, and people will start changing their lifestyle and their preferences and the way they do all things in life, so that they're able to just move in a direction where they are stress free, they are anxiety free, and they're happy to the core of their heart. I think that is more important. So you said like people should be not just aware but also be educated about how to manage stress. Right. So do you feel that a lot of institutions, educational institutions now have incorporated the importance of time management, and with the likes of Ankur Warikoo also advocating for it openly, very openly. So people have come to realize that time management is a skill. Hmm. So do you think that stress management should also be incorporated into like somewhere into educational systems in the country? Yes, definitely, definitely. And I think uh, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, आई थिंक दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट फॉर अ डिफरेंट टाइम, बट एजुकेशन सिस्टम अभी भी क्या कर रहा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ टू क्रिएट प्रोडक्ट्स विच आर एम्प्लॉयबल. That is Right. the single most KPI that the Indian education system is targeting. How can I create people who are employable, जो पैसा कमा सकते हैं, जिनको नौकरी मिल जाए, Factory worker. right? Factory workers कह सकते हो. But education is not necessarily that. Education, what the current education system, that is just a part of it, right? There's much more to life. And जो अवेयरनेस होती है, जो एजुकेशन होती है, मतलब दिस इज़ द डिबेट दैट वी कॉमनली हैव बिटवीन आवर फ्रेंड्स, राइट? कि अगर आप छोटे शहरों से लोगों को देखोगे, जो भी छोटे शहरों से लोग निकल के बाहर आते हैं और अच्छा करते हैं, वो उनको हार्ड स्किल्स में कभी भी फाइट नहीं आती है. हार्ड स्किल्स में वो हमेशा compete कर सकते हैं किसी भी बड़े शहर के लोगों से भी, एंड यहाँ तक कि They वेस्ट turn के out to लोगों be के साथ भी, even better sometimes. and even better sometimes, right? But where they lack, and there's nothing to feel bad about it, is just because of the ecosystem that they've Right. come from, right? जो नॉर्मल पर्सनालिटी के जो एक्सपोजर की बात होती है, एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट एंड टॉकिंग अबाउट एंड नॉर्मलाइजिंग टॉकिंग अबाउट things which maybe a lot of people don't think are important in smaller areas, because again वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो अलग प्रॉब्लम्स है. Right. वहाँ पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लैक, एंड दैट इज, एंड maybe we'll have to change the education, or maybe we'll have to figure out a mechanism that we start incorporating all of these things from day one. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेक्स एजुकेशन होता है, आजकल के लोग करने लगे हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट टाइप की चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में लोगों को सिखानी चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, सेइंग कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट अबाउट से अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स, like a habit of reading, right? It is very important, no matter what you want to do in life, whether you want to become an entrepreneur, you want to become an artist, you want to be, even if you want to just work in companies, right? Reading as a habit is very Right. important. Absolutely. But if I look back, nobody told me कि बचपन में कि यार पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई करनी तो करती चाहिए. है, पढ़ाई करनी चाहिए बोलते थे, लेकिन यू शुड रीड, Right. वो किसी ने हमें नहीं बताया. नाउ व्हेन वी came to IIT, when we started working, we realized that this is a very important skill for you to have. Now if you're just trying to do it, looks like a task. For somebody who's been doing it since Right. standard 6th or 7th, it is a part of life, right? It does not feel like a task. For us it feels like a task, and when it feels like a task, it is very difficult for you to keep doing But it tell again me and this again. कि अभी तो हम बड़े हो गए, हमारे समझदारी हो गई है, तो हम सोचते हैं कि कोई मुझे बता देता कि उस टाइम पे तो मैं पढ़ लो, लिख लो. लाइक राइटिंग ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. मेरे को तो लगता है जिसको Yes. लिखना आता है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है. बिल्कुल. मैं अगर अच्छे से करता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता. ठीक है. तो बट अगर हमें ये चीज़ें बचपन में बताई जाती हम पिक नहीं करते. मतलब बचपन में हमारी प्रायोरिटी ये थोड़ी होती है कि हम स्किल प्रायोरिटी थोड़ी है बचपन में. तो आई डोंट थिंक कि खाली एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बोल देना कि वो ये चीज़ें बताते नहीं हैं तो वो प्रॉब्लम है. आई थिंक देयर हैव टू बी क्रिएटिव सॉल्यूशंस कि वो चीज़ बच्चे पिक भी क्यों करें. व्हाट्स द मोटिव, मैं पढ़ना क्यों सीखूं. एग्जैक्टली, आई थिंक कि बात सही है. तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि ये सब जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, या फिर जो कोर एक्टिविटीज़ है, जो सबको आनी चाहिए. सो द आइडिया इज द सॉल्यूशन
to this problem cannot be alone solved by education. Yes. Right, you have to create an ecosystem around it for it to start becoming a habit, right? इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी रोल है, इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, इसमें पीयर ग्रुप्स का भी रोल है। अगर आज के डेट में मेरे 10 दोस्त हैं स्कूल में एंड 10 के 10 ये 4 चीज़ें करते, बिकॉज यू ट्राई टू फॉलो गुड, इफ़ यू हैव अ गुड सर्कल यू ट्राई टू फॉलो people and you try to pick up good habits that they are doing. जैसे संगति का असर कहते हैं, तो संगति क्या है? संगति इज कि जो आपके साथ लोग रह रहे हैं उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी में वो धीरे धीरे आने लग जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई हमारे माँ बाप और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई संगति सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपका संगत खराब है तो आपकी चीज़ें, आपकी आप भी, आपकी मेंटालिटी भी, आपके थॉट प्रोसेस भी खराब हो गए। सो इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। कोई अगर बोल देता, एंड हो सकता है कि नहीं करता, आज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर आर 10 थिंग्स which are equally important in life apart from core academics, right? And उसके ecosystem बनाना, normalizing it is important, and then it is up to people to, or the children to pick up the skills that they find more relevant, right? कि जैसे More interesting. competitions होते हैं, right? extra curricular competitions होते हैं, the more you participate in competitions, your perception of yourself and your general confidence in life increases, right? So creating an ecosystem both in terms of एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स के लिए मैंडेट बनाना कि ऐसे बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करते जाना है, एंड मेक इट फन, डोंट ऐड अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस व्हाइल क्रिएटिंग इट इन चिल्ड्रन। यार ऐसा उसको भी वो नहीं पता कि तुमने खराब किया तो तुम अगेन बच्चे के लिए एक और पेपर बना दिया कि इसके लिए भी अब घिसवाएगा। You have to, How to have fun. right, what is important is to make it fun, Right. and not judge people on the outcomes of it, but just basically focusing more on the process rather than the outcome, and that is the need of the hour. एंड एक तो ये आई थिंक कॉन्स्टेंट डिबेट इन लाइफ होती है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि अ लॉट ऑफ पीपल हु नॉट कॉन्फिडेंट इन अर्ली इन देयर लाइव्स, सो दे ग्रो अप एंड दे रियलाइज कि कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, तो देन दे जस्ट बिकम कॉन्फिडेंट। तो उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस इज रियलाइजिंग दैट नोबडी एल्स मैटर्स, you have to be confident, right? But empathy is everybody else matters. So everybody also matters, not else matters. So आई थिंक वहाँ पे वो वाला तो सीसॉ वाला ऐसा हो जाता है कि मतलब पीपल आइदर गेट वेरी कॉन्फिडेंट लो ऑन एम्पैथी एंड पीपल गेट लो ऑन लाइक हाई ऑन एम्पैथी एंड लो ऑन कॉन्फिडेंस। आई थिंक कॉन्फिडेंस balance और बहुत एरोगेंस जरूरी में है। फर्क है, तो Right. वो एरोगेंस हो जाती है, राइट कि तुम दूसरे को मतलब feeling superior versus making somebody feel inferior. that comes with balance of empathy, right? हाँ. If you care about the other person yeah. enough, That so then empathy- you will not feel you have to make the other person feel bad in order to make yourself feel good, Right. so that I think balance is तो जो हम necessary. ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इंडिक फिलोसफी इज ऑल अबाउट, Right. सत्य, करुणा, ठीक है, शांति, ये जो कॉन्सेप्ट्स है यही इंडिक कॉन्सेप्ट्स है। Right. कि जो लाइफ, अगर इफ़ यू लुक बैक आज से 5000-6000 पहले जो सेंट्स रहते थे, ये रहते, उनके लिए वे ऑफ लाइफ क्या था? बेसिकली सस्टेनेबल लिविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंडिक प्रैक्टिसेस में, इंडिक कॉन्सेप्ट में कोलैटरल डैमेज करके कोई चीज़ नहीं Right. होती है, राइट? जो भी एक वे ऑफ लाइफ था, इट वॉज इन प्योर हार्मनी विथ योर objectives, the nature and the community. How collectively these three things can grow. आज की डेट में you say कि I want to become successful in life. Say for example, I want to have a very high quality of life, right? That necessarily boils down to having a very good house, right? In modern context. बंगला गाड़ी ये है। अब उसके लिए आप क्या करते हो? आप बहुत पेड़ पौधे काटते हो, आप सब चीज़ कराते हो। बट जो पुराने प्रैक्टिसेस होते थे वो होता था, हाउ डू वी बी वेरी माइंडफुल इन एवरीथिंग। इट डिड नॉट मीन कि हम ग्रोथ को चेज़ नहीं करेंगे, हम इम्प्रूवमेंट्स को चेज़ नहीं करेंगे, बट देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन एट व्हाट कॉस्ट, राइट? Exactly. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आप एम्पैथी बोल रहे हो, जो कंपैशन की बात हो रही है, जो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, सत्यता की बात हो रही है कि ऑलवेज फॉलो द ट्रुथ, यही बेस प्रिंसिपल्स है इंडिक नॉलेज सिस्टम के। Right. एंड देन स्लोली एंड स्लोली उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप की गई है, एंड दिस इज व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू bring out and trying to revive and just give it in a fashion that people actually start understanding the deeper logic behind it, and at the same time how can it impact their life in a positive way. राइट, इसको क्योंकि पैकेज करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जो आज की जनरेशन है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, वो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम इतने ज़्यादा, मैं खुद अमेरिकन मूवीज़ देख के बड़ा हुआ हूँ,
मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद, मैं अपनी नॉलेज लेने अपने नॉलेज सेंटर्स में जाता ही नहीं हूँ, मैं मंदिर या मस्जिद में जाना पसंद नहीं करता। आज आज का जो बच्चा है कि जाता भी है तो प्रॉबेबली वहाँ से सीखना नहीं चाहता, उनके साथ बैठना नहीं चाहता। तो उसको ये सब नहीं, मतलब उनसे तो नहीं लेना। अगर किसी की दाढ़ी है और वो एक अंगवस्त्रम में बैठा है लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की अच्छी बात कर रहा है, तो यू डोंट वांट टू टेक दैट। यू विल टेक दैट फ्रॉम अ पर्सन जिसने सूट पहना हुआ है, जिसके पास एक BMW है, वहाँ से तुम सेम नॉलेज ले लोगे। तो दैट पैकेजिंग ऑफ दैट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू आर प्रॉबेबली डूइंग। राइट। आप उसी नॉलेज को पैकेज करके थ्रू। वी डोंट वांट पीपल, बेसिकली क्या है कि जो हमारे सॉल्यूशन जितने भी है एंशियंट विजडम है, बट दीज आर वेरी कॉन्टेम्पररी सॉल्यूशंस, राइट, कि जो Right. आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल। राइट। वी डोंट वांट पीपल टू लीव एवरीथिंग एंड गो बैक या एंड बिकम अ साधु, राइट। दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज नॉट वी इंटेंड टू डू। बट आप उस नॉलेज सिस्टम को कैसे आज के प्रॉब्लम्स के लिए आज के कॉन्टेक्स्ट में विदाउट डूइंग, बट जस्ट बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ, राइट, हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस इज व्हाट वी इंटेंड टू अचीव। बिकॉज जो पूरा जो नरेटिव है ना, वो नरेटिव थोड़ा डिस्टॉर्ट हो चुका है। कॉन्सेप्ट्स लाइक इग्नोरेंस इज ब्लिस, यू ओनली लिव वंस, राइट, ये सब जो जो कॉन्सेप्ट्स आ गए जिसको हमने बहुत कूल बना दिया है, वी हैव नॉट इवन थॉट अबाउट इट कि व्हाट इट लीड्स टू, व्हाट लार्जर इम्पैक्ट इट क्रिएट्स इन सोसाइटीज, राइट। एंड बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में, देयर वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो हम बहुत डिबेट करते हैं कि लॉट ऑफ क्वेश्चन कीप्स अराइजिंग, कि वेस्ट में भी है कि बिग फैट इंडियन वेडिंग, राइट, अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज कि इंडियन शादियों में इतना पैसा क्यों खर्च होता है, इतना फ्लैम्बॉयंट तरीके से इतना एक्सटेंसिव वेडिंग क्यों करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। एंड आई ऑल्सो यूज टू क्वेश्चन लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई हैड क्वेश्चन कि अगर मैं कभी करता हूँ कि आई विल नॉट डू सच थिंग्स, राइट। उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट गोइंग डीपर इनटू सच थिंग्स, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ही सोची समझी कंस्ट्रक्ट थी पुराने की सोसाइटीज़ में। क्या होता है कि जब आप शादी करते हो, शादी करने में कि 2 परिवार आ रहे हैं, 2 परिवार के हर एक लोग एक-दूसरे को मिल रहे हैं, मौसा भी मिलते थे, फूफा लोग भी मिलते थे, जीजा जी लोग भी मिलते थे, सब मिलते थे। उसके बाद पूरे शहरों में, पूरे गाँव में कार्ड भिजवाया जाता था, 5-500 हज़ार लोग आते थे, लाखों रुपए शादियों में लगाए जाते। द आइडिया ऑफ डूइंग दिस was कि once you are getting into a relationship or you are getting into companionship, a by creating all of these financial constraints and social constraints, इससे क्या होता था कि they were trying to do two things: a, be very sure what you're walking into, राइट। b, exit was not an option. Why are there so many divorces in west? Because walking out of a relationship has become very easy. हमारे सिविलाइजेशन में, हमारी सोसाइटी में उस वॉकिंग आउट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। नहीं, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हाँ, एक्चुअली। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो आप आ गए, यू हैव टू फिगर, वी कैन ऑलवेज डिबेट ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट कि या व्हाट इट आल्सो लीड्स टू, बट द प्राइमरी रीजन ऑफ हैविंग दैट सेटअप was to make sure that you're very confident what you're walking into. B, walking out is not an option. You have to do everything in your capacity to make your relationship work. The more you have an exit route in mind, there are lesser chances for you to actually try to solve things when something goes south, right? So ये जो पूरा कंस्ट्रक्ट है, जो पूरा नरेटिव है, आई थिंक इसको चेंज करना या इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग is, I think, what is needed. And जब when you start questioning them, then you start realizing a lot of things जो आपको पहले लगती थी सही है, अब लगता है कि मे बी गलत है। बट आई थिंक काफ़ी मतलब ये तो डीप डिस्कशन हो गया, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड कि एवरी वन, आई थिंक 3 of us here at least, if not Mukesh, dreamt of going to IIT at some point. But नहीं, मैंने नहीं सोचा। तूने सोचा भी नहीं था? मुझे भरोसा, मतलब भरोसा ही नहीं था। मैंने तो कोचिंग मिली थी लेवल, नहीं, मैंने तो फुल उम्मीद बता। मैं तो कोचिंग लेने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि मुझे पता था कि पहली चीज़ तो 11वीं तक पता ही नहीं था कि आईआईटी होता क्या है। ठीक है, अपनी दुनिया में अलग जी रहा था। जब पता चला तो पता चला कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं मुझसे तो ना हो पाई। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आईआईटी हो पाएगा। कभी ये सोचा कि हाँ आईआईटी जाएंगे, सैलरी मिलेगी, ये वो, पर एक्चुअली में कभी सोचा नहीं इसके बारे में। तो 3 of you, उसने भी नहीं, और 2 of us. two of you. बट 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू नो कि एक तो आपने कैसे डिसीजन लिया कि आईआईटी जाना है, उसके लिए प्रिपेयर करना, व्हाट ऑल स्टेप्स डिड यू टेक, एंड हाउ मच डू यू थिंक आईआईटी हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ? मतलब वुड यू थिंक दैट you would be in the same place that you are without IIT also?
ऑल्सो अपनी सारी सुपर पावर्स भी बताना, क्योंकि आईआईटी जाने के लिए शायद वो लगती होंगी, तो वो भी बताना थोड़ा। ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहली चीज़, जैसे केशव बोल रहा है, मेरे को भी ऑनेस्टली 10th तक कोई आइडिया नहीं था कि आईआईटी क्या होता है, बिकॉज मैं बनिया परिवार से हूँ। मेरे घर वाले दुकान में रहते थे, घर पे हम लोग रहते थे, मज़े करते थे, स्कूल जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, अपना हमने जीवन जीवन उसी में निकाल दिया। कभी उतना लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं चलते थे। सो बेसिकली जब मैं स्कूल में था, सो आई हैड टू फ्रेंड्स, राइट, जिसको हमें तीन लोग, हम लोग चडी बडीज थे, जिसको थ्री मस्केटियर्स कहते थे। नमन एंड रवि वेर माई टू अदर फ्रेंड्स, राइट। तो हम हमेशा से स्कूल में हर चीज़ साथ करना, सब कुछ करना। पढ़ने में फॉर्चुनेटली अच्छे थे, तो स्कूल में भी इज्जत होती थी, टीचर्स इज्जत करते थे, सब जो स्टूडेंट्स होते थे, बैचमेट्स होते थे, वो भी इज्जत करते थे। एंड वो थोड़ा नरेटिव हो जाता है, ये लोग अच्छा करते तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, वो ऐसा नरेटिव हो जाता है। सो यू राइडिंग ऑन दैट हाई हॉर्स, राइट। आई particularly did not have any idea about IIT, to be honest, at least till 9th और 10th स्टैंडर्ड कि IIT करके कुछ होता भी है, बिकॉज मेरे परिवार में भी कोई गया नहीं था, कोई था नहीं। बट नमन ऑन दी अदर हैंड हैड नॉलेज अबाउट इट, क्योंकि उसके मॉम डैड दोनों प्रोफेसर थे, थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड जाता है। एंड हिज सिस्टर ऑल्सो वेंट टू कोटा फॉर अ मेडिकल कोचिंग, बट शी न्यू कि यहाँ पे IIT का इतना चीज़ें हो रहा ही हो रहा है। तब नमन ने फिगर आउट किया ये चीज़ें, क्या कि अगर अच्छा पढ़ते हो तो साइंस करना है, साइंस में सबसे अच्छा करना है तो क्या होता है, IIT होता है। तो नमन ने बोला कि भाई हम लोग IIT करेंगे, ये चीज़ें। मी एंड रवि वे लाइक चलो कर लेते हैं, ठीक है, अगर सबसे अच्छा यही होता है, इसी को चेस करना है, तो लेट्स डू इट। एंड दैट इज़ हाउ माई जर्नी टूवर्ड्स चेजिंग IIT एज अ ड्रीम डेस्टिनेशन स्टार्टेड। उसके बाद क्या है कि वी डिसाइड एंड वी डिड नॉट नो कैसे करना है। नमन वाज द वन से कि चलो कोटा चलते हैं, सो वी वेंट टू कोटा, द थ्री ऑफ अस वेंट टू कोटा टुगेदर, वी स्टेड टुगेदर फॉर द फर्स्ट 2 years। वहाँ पे भी गए, वहाँ पे चीज़ें किया, तो वहाँ आई ओपनर की तरह आता है कि वहाँ पे तो अंधों में काना राजा वाली चीज़ होती है कि आप अपने गाँव में डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहे हो, राइट। स्कूल टॉप कर रहे हो, आपको लगता है मेरे से अपने एको चेम्बर में जी रहे थे अभी तक तो। हाँ, कि आपसे तो अच्छा कोई है नहीं। देयर इज सम फीलिंग, यू नेवर एरोगेंट अबाउट इट, बट देयर इज सम फीलिंग एट द बैक ऑफ द हेड सेइंग कि आप तो बहुत अच्छा करो, आप कर सकते हो। जब वहाँ पे जाते हो आपको देख के लगता है कि बहुत सारे लोग अच्छे हैं, आप ही अच्छे नहीं हो। एंड वहाँ पे द एंटायर मैकेनिज्म दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव क्रिएटेड इज टू हैव दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट फ्रॉम डे वन। कि अगर आप जैसे द थ्री ऑफ अस वी डिड आर कोचिंग फ्रॉम बंसल्स, राइट, इन कोटा। सो कोटा में वहाँ पे क्या इसलिए होता है, क्योंकि आप बनी हो। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, Okay. बंसल वाज द बेस्ट इंस्टीट्यूट बैक देन। सो उसके लिए किया, उसके टेस्ट वेस्ट दिए, फॉर्चुनेटली हो गया, तो वी वेंट देयर। वहाँ पे जाके क्या होता है, देयर आर डिफरेंट बैचेस। सो इफ़ यू टॉक अबाउट 11 एंड 12, सो देयर आर डिफरेंट बैचेस कि 11th स्टैंडर्ड में PQRS होता है, P के 10 बैच होते हैं, R के होते हैं। एंड यू गेट बेसिस योर इंटरेस्ट, यू गेट into one of these batches, and then यूज नॉर्मल हर बैच के हिसाब से अलग टीचर्स होते हैं। जितना अच्छा P1 इज़ द बेस्ट बैच, जिस पे बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसे ग्रेजुअली P से 10 तक आता है, फिर Q होता है, फिर R होता ही होता है। यू गेट इनटू द बैच एंड एवरी मंथ यू हैव अ लॉट ऑफ रिव्यू टेस्ट। आपको नॉर्मल DPPs होते हैं, नॉर्मल शीट्स सॉल्व करने होते हैं, क्लासेस में डाउट्स हैं, एंड एवरी मंथ दे हैव अ टेस्ट, लाइक इट इज़ अ JEE फॉर्मेट टेस्ट, 2 papers, 3 hours each, OMR based। You have to just go and fill it. Basis how much you score in that, there is a cumulative scoring, and every month your batch gets reshuffled, right? कि आपने इस बार किया, आप समझो you started with P10 but you did exceptionally well in this, then cumulative score के साथ you can also go to P1 P2। next test में आपने अच्छा नहीं किया, you can come down to P6, right? So वो जो competitive spirit होता है वो बहुत ज़्यादा डे वन से करते हैं कि यू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंग, दे गिव यू ऑल द मटेरियल्स, दे गिव यू एवरीथिंग, दे मेक यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विच आर नॉट इवन नेसेसरी for IIT, but they just in terms of preparation they just go beyond what is required so that you ready। so वो हमने 1-2 साल किया, वहाँ पे भी चीज़ें करी, but again वो realization कितना मेहनत की ज़रूरत है, कितनी effort की ज़रूरत है, वो हमें नहीं समझ में आया। so we did lose track ऑफ कि क्या करना नहीं करना है। सो बहुत मज़े किए उस 2 साल में, क्योंकि अगेन यू कम आउट ऑफ योर होम टाउन, तो आपको फ्रीडम की भी फील होती है कि अचानक से आपको कोई देखने बोलने वाला नहीं है, बट यू हैव बेसिक आइडिया कि यार देयर इज समथिंग दैट आई विल Right. नॉट डू, बट फ्रीडम अचानक से मिलता है तो यू काइंड ऑफ गेट स्वेड अवे बाय इट, राइट। सो वो बहुत सारे मज़े किए, बहुत मूवीज़ देखी, बहुत फन किया,
पढ़ाई भी करने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसके बाद जब आप 12th बिना में पढ़ाई करे आईआईटी दिल्ली पहुंच गए? नहीं, तो बिना पढ़ाई किए नहीं, पढ़ाई करी बट व्हाट नॉट नेसेसरली इन अ फैशन दैट व्हिच वाज रिक्वायर्ड और मे बी द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट वाज रिक्वायर्ड। वो किया, 12th में जेईई दिया, हम तीनों का नहीं हुआ, एंड दैट वाज एन आई ओपनर फॉर अस। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई सॉ माय जेईई रिजल्ट, आई क्राइड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर सेइंग कि क्या सोचा था एंड क्या हो गया। बट देन एंड fortunately or unfortunately I got good rank in AI triple E, so there was again a pressure from family saying कि चल कोई नहीं ये ले ले, AI triple में 4000 रैंक है तो कोई बात नहीं ले ले, तुमको NIT अच्छा मिल जाएगा और भी जगह मिल जाएगा। बट द थ्री ऑफ बिकॉज द थ्री ऑफ अस वेयर टुगेदर एंड बचपन से हमारे परिवार वालों ने हमें कैसे पाला है कि दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक अस वेरी इंडिपेंडेंट, राइट। कभी कोई नहीं, तुम्हें क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ कोचिंग लेनी है, क्या बुक्स लेने हैं, क्या एग्ज़ाम देना है, माई पेरेंट्स हैड जीरो से इन इट। मतलब उनको पता भी, से तो छोड़ो, उनको पता भी नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा they provide the resources but you रिसोर्स have है उनका। वही था, मेरे पापा का यह था, तुम संघर्ष करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट वो रहते थे, बिकॉज ही वॉज ऑक्यूपाइड इन हिज शॉप ऑल डे राउंड, राइट। तो वो इंडिपेंडेंस हमारे पास था। तो वो जो डिसीजन मेकिंग का होता है, लॉट ऑफ टाइम्स यू सी कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स के डिसीजन का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर Right, होता है कि right. पेरेंट्स बोलते हैं आप ऐसा कर लो, आप ऐसा करो, एंड दे आर राइट इन देयर अप्रोच कि उनको लगता है कि वो भी अच्छा ही सोचते हैं, बट वो इंडिपेंडेंस नहीं होती। हम तीनों के पास वो हमेशा से इंडिपेंडेंस थी। सो वी वर इन अ पोजिशन टू टेक अ कॉल कि चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेट्स गिव इट अ फाइट अगेन। सो हमने डिसाइड किया कि एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर से जाएंगे। देन द थ्री ऑफ अस वी वेंट अगेन टू कोटा, सेम इंस्टीट्यूट। वी कुड हैव चेंज्ड इंस्टीट्यूट, वी कुड हैव चेंज्ड लोकेशन, बट वी रियलाइज कि इनका कुछ नहीं था, अपना हमारे ही एंड है, से ही right. कमी थी। सो वी वेंट इन 13 टू कोटा अगेन। वहाँ पे एक साल हमने पढ़ा। अब ये जो एक साल था, ये एक साल हमने बहुत ही इज्जत से पढ़ाई करी, एंड मैंने ऐसे इज्जत से पढ़ाई करी, पढ़ाई भी करी, एंड जितना फन 11th-12th में करते थे उतना फन भी किया। दिस ईयर वॉज नॉट समथिंग कि हमने सब कुछ छोड़ के अपने आप को कमरे में बंद करके वी जस्ट स्टडीड। वी स्टडीड, we watched movies, we ate out, we had fun, we did a lot of things, because उस समय फिर समझ में आ गया था, this was my first encounter with the word balance in life, कि what does balance in life mean, right? And उस तरीके से सोच के नहीं किया, it somehow happened, and now if I look back I see कि that was the right definition of what it means to have balance in life, Right. and that is how I think we studied, दिया एग्ज़ाम दिया, हो गया आईआईटी में फॉर्चुनेटली। आईआईटी में भी हो गया, उस समय भी कोई एक्सपोजर नहीं था कि क्या इंटरेस्ट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो दिखा रैंक के हिसाब से जो ब्रांच मिल रही है वो ब्रांच ले लिया हमने। कौन सी थी, लेट मी आई गेस? मैकेनिकल? हाँ, आई टुक मैकेनिकल, क्योंकि वो मिल रहा था दिल्ली में, मैकेनिकल अच्छा था, मिल रहा था, एंड मैकेनिकल ज़्यादा हमें लगता था कि गाड़ियाँ हमें अच्छी लगती है तो मैकेनिकल ले लेते हैं, बट इट वाज सो सुपरफिशियल बैक देन, द थॉट प्रोसेस वाज सो सुपरफिशियल बैक देन। सो वो हमने ले लिया। उसके बाद ठीक है, कॉलेज आए, अच्छा, तीनों का हो गया? तीनों का हो गया। सो द माय टू फ्रेंड्स वेंट टू केजीपी आईटी अच्छा। खड़गपुर, एंड आई केम टू दिल्ली। Okay. ठीक है, सो हम तीनों का हो गया, तो हम कॉलेज आए। कॉलेज में आने के बाद यूजुअल अगेन जो एक फीलिंग थी कि हम ही अच्छे नहीं है, वो और हाईलाइट हो गई कि यहाँ पे यहाँ तो और सब शेख चिल्ली लोग हैं। और वो हो गए, सब चिल लोग हैं, ये है, लेकिन देयर इज मोर टू द वर्ल्ड। फॉर मी IIT was a very good place, and I'll attribute everything that I am today to IIT, not in terms of core or in terms of intangibles, but more in terms of intangibles। IIT में कि वहाँ पे गए, बहुत सारा exposure मिला, and even IIT दिल्ली had a lot role to play. If you also compare IITs, the kind of atmosphere and the kind of exposure IIT Bombay and IIT Delhi gives you is slightly better than IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। वहाँ पे भी बहुत लोग अच्छे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती बट है, ये बट मेट्रोपॉलिटन बिकॉज में तो मेट्रोपॉलिटन का जो फ्लेवर होता है, जो आज दुनिया में चल रहा है, Right. यू आर द फर्स्ट वन टू गेट होल्ड ऑफ दैट कि Right. वो चीज़ें कैसे चल रही है। तो इट इज़ वेरी राइट। हाँ, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वहाँ पे गए, बहुत सारा एक्सपोजर मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली। आईआईटी में बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है, बढ़िया परिवार से आता हूँ, धंधा चलाने का हमेशा मन था, बट उसका फ्लेवर कि हाँ, मतलब पढ़ लिख के भी तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि उनको ये लगता था कि पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम दुकान पे ना बैठो। Right. ये मेंटालिटी सीड की जाती है छोटे शहरों में कि तुमको पढ़ा रखा है इसलिए रहे ताकि तुम ये सब काम ना करो, बट वहाँ पे जाके पता चलता है कि तुम पढ़ लिख के भी और भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। इम्पैक्ट क्रिएट करने के बहुत तरीके। एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का तरीका है कि तुम
सिविल सर्विसेज में जाओ जहाँ पे तुम ग्रास रूट लेवल पे काम करो। इम्पैक्ट क्रिएट करने का, लोग बिजनेसमैन को इंडिया में एटलीस्ट बहुत ही थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट से देखा जाता है कि कैपिटलिज्म को बहुत ही गलत राइट। कॉन्टेक्स्ट में पुट किया जाता है, बट दैट इज ऑल्सो अ वे टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। रेंट पे घर लेना था तो हर जगह बता रहा था कि मैं नौकरी करता हूँ, क्योंकि लोग रेंट पे नहीं देते। नहीं देते। आज की डेट में मैं भी जब घर ढूंढ रहा था, अगर मैं बता देता कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, खुद का बिजनेस चला रहा हूँ, तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो वो लोग नहीं देना चाहते हैं। अ लॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स आस्क फॉर योर कंपनी आईडी कार्ड्स एज वेल हाँ। व्हाइल गिविंग इट आउट, तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट है। सो आईआईटी में जब हम गए तो बहुत सारा एक्सपोजर था, ये चीज़ें था। अब आज के डेट में व्हाट आर द कोर स्किल्स, चीज़ें जो I did mechanical, I got good grades in mechanical, but to be honest, if you ask me, I'm not a mechanical engineer per se. इंजीनियर हूँ, बट इंजीनियर में भी क्या होता है कि जो स्किल्स एक्चुअली आईआईटी ने मुझे सिखाया है, 2-3 चीज़ें हैं। एक है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप बोल दो, जो इंजीनियरिंग एज अ, मतलब आई हैव स्लाइटली मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंजीनियर्स जस्ट ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सेइंग कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है और चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल से जाके थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा Right. होते हैं, एंड दैट इज़ माई पर्सनल बिलीव, वी कैन डिबेट ऑन दैट। दूसरी चीज़ जो आईटी ने मुझे सिखाई है, वो सिखाया है सर्वाइवल स्किल्स, राइट, कि हाउ नो मैटर वेयर यू आर, क्या भी सिचुएशन, चाहे पूरे साल नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले पढ़ के या 1 दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम्स निकालना हुआ, या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो पॉलिटिक्स होती है, इफ़ यू वांट टू टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द इंस्टीट्यूट, राइट, चाहे कोई भी, आपको अगर फेस्ट्स कराने हैं, आपको कोई सोसाइटी को लीड करना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ, there's a structure in place, right, and for you to be able to part, you have to become successful there, you have to गेट इन्वॉल्व इन दैट। तो जो सर्वाइवल स्किल्स है कि किस समय क्या करना है, ये चीज़ें करनी है, वो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आईआईटी हैज़ टॉट मी, एंड ऑब्वियसली एक्सपोजर, कि यू कैन थिंक बिग, द आइडिया इज कि यू कैन थिंक बिग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आईआईटी व्हाट गिव्स यू, अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई थिंक आई हैड अ ब्रीफ डिस्कशन विद ओसामा ऑन दिस, कि लोग पूछते हैं कि आपको आईआईटी से क्या मिला है, ये चीज़ें मिली है। सो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नैरेटिव सेइंग कि अच्छे लोग आईआईटी से निकलते हैं, जो आईआईटी में नहीं होते वो अच्छे रहता है। आई डोंट नेसेसरली एग्री विद दैट। आई हैव सीन टन्स ऑफ पीपल जो नॉर्मल कॉलेज से, जो नॉर्मल स्ट्रीम से निकल के, एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन लाइफ, राइट, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आईआईटी जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे, चीज़ें कर रहे। सो आई डोंट थिंक कि इट इज़ राइट टू जनरलाइज, बट 2-3 चीज़ें आईआईटी आई थिंक कि सही कर देता है मेरे हिसाब से। पहली चीज़ है कि आईआईटी, व्हाट हैज़ आईआईटी गिवन मी इज़ अ फिश नेट। आई नो व्हाटएवर आई डू इन लाइफ, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं इससे नीचे नहीं गिरूँगा। Right. देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ अ फिश नेट, मैं लाइफ में कुछ भी करता हूँ, आई कैन टेक रिस्क, आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, बट मैं इससे नीचे नहीं गिरूँगा, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आईआईटी हैज़ गिवन मी। द सेकंड थिंग इज़ कि अगर आज की डेट में मैं दुनिया में किसी भी बंदे से जाके बात करना चाहूँ, आई कैन टेल देम, आई कैन अप्रोच देम, एंड Doors open up for you. बिकॉज आई कम फ्रॉम आईआईटी, एटलीस्ट दैट पर्सन विल लिसन टू मी। एक Right. बार सुन लेगा, दोबारा वो मेरे को भगा दे, वो हो सकता है, बट एक बार वो मेरे को सुन लेगा, जस्ट गिविंग अ बेनिफिट ऑफ मी सेइंग कि मैं आईआईटी से हूँ, तो वो मेरे को सुन लेगा। एंड जो तीसरा चीज़ है कि जो लाइफ में जो एक हसल होता है, जो एक डिसिप्लिन होता है, जो एक एथिक्स होते हैं, वो आईआईटी आपको थोड़ा सिखा देता है कि आप कोई भी, आज की डेट में व्हेन आई एम रनिंग अ बिजनेस, hiring is a very big problem, and hiring में भी you get a lot of people, a lot of folks जो कि हो सकता है हार्ड स्किल वाइज बहुत अच्छे हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स वाइज बहुत खराब है। सो जो ये आईआईटी का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो ये पूरा प्रेशर का इन्वायरमेंट है, या फिर जितना भी एक्सपोजर है, वो आपको बेसिक चीज़ों में सिखा देता है कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू विल नेवर डू रॉन्ग, कि अगर कुछ काम कर रहे हो, आप उसको इज्जत से काम करोगे, यू विल ट्राई टू गिव योर 100% देयर, वहाँ पे आप चीज़ें सोच समझ के करोगे, आप ग्रोथ के लिए यू विल चेज एन आउटकम, ये चीज। तो ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है ना, वो आईआईटी में, बिकॉज आपको चारों तरफ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वैसा ही दिखता है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होता है। यू डोंट स्टार्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यू नो यू ऑल्सो हैव टू पुट इन एन एफर्ट टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग गुड इन लाइफ। सो Right. मेरे को लगता है यही 3 चीज़ है आईआईटी ने जो मुझे दिया है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, उसके बाद जब वंस यू स्टार्ट वर्किंग, इट इज़ प्योरली कि आप कितनी शिद्दत से, आप कितनी मेहनत से और कितनी इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हो, एंड उसमें ग्रो करने की कोशिश करते हो, उसके Right. बाद लाइफ के सक्सेस उसी पे डिपेंड करते हैं। आईआईटी डज नॉट necessarily help you, it can give you a lot of good points, brownie points,
at different stages in life, but it will not be sufficient, it will not be enough अगर आप सिर्फ उसी टैग के ऊपर प्ले अराउंड करना चाहो तो। आई थिंक बच्चे जैसे हम पहले न्यूज़ भी बहुत सुनते थे कि आईआईटी में नहीं हो रहा तो बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आई थिंक पावन के थ्रू यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। आई डोंट नो इफ इट्स अ प्रायोरिटी और नॉट, बट फॉर स्टूडेंट्स टू मैनेज दिस स्ट्रेस। राइट। सो इवेंचुअली जो हम नॉलेज सिस्टम की हम बात करते हैं, इंडिक नॉलेज सिस्टम, इट इज़ वैलिड फॉर पीपल अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस कल्चरल बैकग्राउंड्स। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही लोग हैं या लोग रिलीजन में बांट देते कि हिंदू लोगों के लिए, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट इट। what we are talking about is fundamentals of life, right? It is applicable to everybody. Right now at Pawan we are focusing slightly more on 25 to 35 40 वाला bracket more स्टूडेंट्स के लिए, एंड थोड़ा ओल्डर ऑडियंस के लिए थोड़ा लेटर ऑन टैकल करेंगे, जस्ट बिकॉज इफ़ यू लुक एट द रेंज ऑफ 25 to 35 40, ये सबसे वोलेटाइल फेज ऑफ लाइफ होता है जब आप धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होते हो, आपके दोस्त आपसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, तो आपके जो सपोर्ट सिस्टम्स है वो लूज आउट होने लग जाते हैं। आपको लाइफ में अपने आप को फाइनेंशियली भी स्टेबलाइज करना है, यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट योर फैमिली, यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू रेज योर किड्स। आपको अपने परिवार भी, आपके ऊपर जो आप पहले गार्जियन आपके पेरेंट्स थे, अब आप अपने पेरेंट्स के गार्जियन बन जाते हो। Right. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी दैट कीप्स ऑन हैपनिंग इन दिस फेज ऑफ लाइफ, एंड यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम्स भी लूज आउट होने लग जाते हैं। तो लोग थोड़ा अकेला भी फील हो जाते हैं, लोगों को थोड़ा डर भी लगने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करनी है। तो इस बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी भी है यूजर्स की, बिकॉज दे हैव मनी टू Right. सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, राइट? बच्चों के पास नहीं होता है, स्लाइटली ओल्डर्स में उन्होंने अपना बहुत जीवन देख लिया होता है, तो यहाँ पे थोड़ा नेचुरली पुल टू पे फॉर सच सॉल्यूशन ऑल्सो। सो दैट इज द रीजन वाई वी फोकसिंग ऑन दिस segment first, but eventually we'll definitely get into creating more programs and solutions for college students as well as, and बहुत सारे अभी भी बहुत सारे जेनरिक थीम्स है जो उनके लिए अब ऑन हेल्थ एंड वेलनेस, वो उनके लिए भी रेलेवेंट है, बट अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड रिलेशनशिप्स या फिर करियर सक्सेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डोमेन सेम रहेगा, क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। Right. कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए डेटिंग के अराउंड, रिलेशनशिप के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे आपके पार्टनर्स के अराउंड मोर सीरियस रिलेशनशिप के अराउंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वहाँ पे पढ़ाई कैसे करूँ, फोकस कैसे करूँ होगा, यहाँ पे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इस टाइप के द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विल और फिर जब स्कूल में जाएंगे उसी चीज़ को लेके, तो मैंने उसको थाना था या लिखा, उसने बताया नहीं थाना था या नहीं। इस टाइप की चीज़ें, तो वो सब चीज़ें चेंज होगी, तो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विल चेंज बट द डोमेन विल स्टिल बी सेम, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स इन्हीं 4-5 कैटेगरीज में आते हैं मोटा मोटा। दैट इज ट्रू। एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, जब नितिन बोला था वो कोटा गए, उनका फर्स्ट टाइम में रैंक नहीं निकली, तो फिर उनके अंदर एक और जुनून आया कि नहीं यार ये तो निकालना है। दूसरे तरीके के लोग ही होते हैं जो बोर्ड में फेल हुआ, मैं मैथ्स के एग्जाम में, मैंने कहा कौन देगा दोबारा आगे बढ़ो। भाई मैं ये पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहा हूँ, सीबीएसई इज़ अ होक्स। हाँ, इट इज़। मुझे फेल कर भी दे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने फिज़िक्स के पेपर में 15 नंबर का अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट होता है कि अगर मैंने सवाल भी फिर से लिख दिया ना, दैट इज़ व्हाट आई वुड कॉल अटेम्प्ट। बाकियों की तो मैंने सवाल भी नहीं लिखे कि 15 नंबर, और वो सब गलत, कुछ नहीं आता था। 15 नंबर का मैंने अटेम्प्ट किया है पेपर, और मुझे पता था मैं फेल होऊंगा। मैं 23 नंबर्स आए जितने पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं किसी को मिसलीड नहीं करना चाहता कि पढ़ाई ना करे, बट इट्स सच अ होक्स यार। लेकिन हर बार नहीं चलता। मैं मैथ्स के एग्जाम में फुल क्वेश्चन लिख के आता कुछ नहीं मिलता था। मैं जेम्स बॉन्ड बना के भेज देता 007 पे। हाँ, किस्मत होगी प्रॉबेबली, बट मुझे लगता है कि वो जो चेकिंग कर रहा होगा उसको गुस्सा आ गया होगा मेरे बल पे। तो बट एनीवे, बट हाँ, आपके पॉइंट पे आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि आई हर्ड समवन टॉक अबाउट दिस, बट वो तो काफ़ी मेल ओरिएंटेड बात कर रहे थे कि बॉय बिकम्स अ मैन when 2 times in their life, when either their father dies literally or their father dies metaphorically. तो एक तो डेथ ऑफ द फादर मतलब लिटरली होती है, तो बंदे को खुद अपना संभालना पड़ता है, जो भी होता है वो ऊपर से वो हट जाता है हेल्पिंग हैंड। और अगर मेटाफोरिकली क्या मतलब है, जैसे आपने बोला 25 की एज से 35-40 तक, उस एज में आई थिंक ये रियलाइज़ होता है कि मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पापा के पास नहीं है या मम्मा के पास नहीं है, तो अब जो भी है मुझे खुद ही करना है। I have to man up and tackle this on my own. Exactly. But I think that happens to women as well. Everybody, yes, हाँ, yes. so it happens to anyone who tries to make a living or life on their own. So I think that's very true कि मतलब people go through their journey in these few years, and इसमें बहुत transition आता है। मतलब some people go early in life, some people go late in life, but होना it's eventual, evident है, मतलब you can't escape it, I think. But
having said that, I feel you've been a you've been entrepreneur on multiple occasions in your life, right? And you started your journey with Runnerbee. That was during IIT, right? Yeah. And that is that was a competitor to Dunzo, and Dunzo was operating Right. back then too, Right. and you were giving them good competition at that point. So I would not say good competition. That is, I think, too early to. It was too early to say that because we started parallelly. I think Dunzo started a month or a half in advance to us. Dunzo was operating in Bangalore. We were operating in Delhi NCR, specifically Gurgaon to say. Uh, I was still in college, final year. वो कीड़ा हमेशा से था कि कुछ करना है, कुछ करना है. So I, along with two of my friends, Mohit and Karan, we Same started. Mohit, Same Mohit. So Mohit is my co-founder even today. right? Right. So Mohit and Sankalp, we started. Mohit and Karan, sorry. Sankalp is my current co-founder. So Mohit and Karan, we started Runnerbee. So कॉलेज में थे, जुनून बहुत था, वो था, थर्ड ईयर ख़त्म ही हुआ था एंड वी वर सेइंग कि स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप, कुछ पता नहीं था, बच्चे थे, इफ़ आई लुक बैक बच्चे थे, इमेच्योर थे, बट करने का जुनून था कि करते हैं करते. सो द थ्री ऑफ अस स्टार्टेड वर्किंग ऑन Runnerbee. इट वाज एन ऑन डिमांड कॉन्सियस सर्विस, लाइक कि रनर देना आपको, यू हैव एनी एरेंड्स टू रन, यू विल गेट अ पर्सन हु कैन डू दैट फॉर यू. घर पे आप चार्जर भूल गए, ऑफिस चले गए, कोई आपको ला के दे देगा, आपको कोई पार्सल यहाँ से वहाँ पहुँचा देना है, वो कर देगा. वी डिड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल कि लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुँच गए एंड कुछ इंपॉर्टेंट सामान यहाँ गुड़गांव में छोड़ गए. वी हैड अ रनर हु पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर हाउस एंड डिलीवर्ड इट at Anand Vihar railway station. So we ran that business for close to a year. We were doing 60-70 orders a day. काफ़ी वो अच्छा था, बट वी वर स्टिल किड्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ इश्यूज. 60-70 orders per day पे आप पहुंचे कैसे, मतलब? So यार 60-70 orders पे Doesn't happen by accident. नहीं, it does not happen by accident. So what we did was we had 10-12 runners on ground गुड़गांव में. हमने गलती ये करी कि we opened our services in entire Delhi NCR. Okay. Right, that was a mistake. If I look back, you should always follow a cluster approach whenever you're trying to give such services. कि चलो गुड़गांव के एक cluster में करो इसके आसपास के services, because then it becomes very difficult for you to manage. It becomes Operationally it becomes very chaotic operationally, right? So उसको हमने स्टार्ट किया. 60-70 ऑर्डर्स पे भी क्या था, वी वर नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ कंज्यूमर ऑर्डर्स कि 10-12 ऑर्डर्स आते थे कि केक यहाँ पे पहुँचा दो या किसी को ये चीज़ सामान पहुँचा दो, बट वी न्यू कि हमारे रनर्स खाली बैठे हुए, उनका समय जा नहीं रहा था, हाउ डू वी यूज़ देम स्पेसिफिकली. सो वी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ B2B पार्टनरशिप्स की, जैसे निर्वाणा कंट्री, वहाँ पे केमिस्ट की शॉप है, उसके बाद बहुत ऑर्डर आते थे, तो केमिस्ट के हर एक ऑर्डर पहुँचाने के लोग केक शॉप्स थे, केक शॉप्स के साथ पार्टनर करके Right. आपको जो डिलीवर कराना है तो हम करवा देंगे. सो दैट इज़ हाउ वी वर डूइंग 60-70 ऑर्डर्स अ डे, जस्ट सो दैट कि जो हमारे रनर्स है वो यूटिलाइज होते रहे, वो एटलीस्ट चलते तो रहे. ये शॉप्स आपको ऑर्डर दे रहे थे? शॉप्स ऑर्डर देते थे. अच्छा, तो B2B अप्रोच थोड़ा B2B की यूटिलाइज, द आइडिया वाज ऑलवेज टू बिल्ड अ B2C कंपनी, बट पैरेलली यूटिलाइजेशन ऑफ रनर्स कि वो खाली ना बैठे, उनका पैसा कुछ ऊपर हो जाए, उसके लिए वी स्टार्टेड डूइंग That's a good way. एग्जैक्टली. हाँ, बट B2C ऑर्डर्स आते थे आपके पास? B2C आते थे यार, 7-8-10 ऑर्डर्स के आसपास दिन के आते थे. अच्छा, वो तो चैनल क्या था? वो नॉर्मल मार्केटिंग कर दिया, एड्स हो गए, फेसबुक पे एड्स हो गए, Okay. थोड़े बहुत हम ऑफलाइन एक्टिविटी, हम साइबर सिटी चले जाते थे, पैम्फलेट खड़े होके लोगों Okay. से रैंडमली बात कर रहे हैं, DLF स्क्वायर है हाईवे पे, वहाँ पे चले जाते थे, टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल कि आपको ऐसे ऐसे इश्यूज है, ऑफिस गोअर्स है तो आप कर सकते हो. इस तरीके से करके वी यूज टू डू. एंड व्हेन आई से 3 months, 4 months, 5 months into the business, when the basic things were set up, then we started doing such orders. कि वो भी धीरे धीरे इवेंचुअली स्केल हुआ. हम थोड़ी बहुत ब्रांडिंग की बहुत सारी गलतियाँ हमने भी करी, एंड आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट कि हाउ डिड इट पैन आउट. तो ब्रांडिंग के लिए वी वर वेरी फोकस्ड ऑन ब्रांडिंग. तो हम क्या करते थे, फोक्स एंड स्पून्स का एक ब्रांडेड किट बना के जितने भी फूड वाले रेस्टोरेंट्स है उनके थ्रू भिजवा देते थे कि कटलरीज के, कि देयर सम ब्रांडिंग ऑफ Runnerbee ऑन कटलरीज की, यू कैन डू दैट. जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स है उनके बैग्स होते हैं उस पर थोड़ी बहुत ब्रांडिंग कर दी. सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स वेयर वी एंडेड अप स्पेंडिंग मनी विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, और वी कुड हैव थॉट ऑफ मोर फ्रूगल वेज टू प्रमोट आवरसेल्व्स. एंड थोड़ा बहुत हमने ये भी गलती की, हमने साइबर सिटी में भी थोड़ी बहुत ब्रांडिंग भी करवा दी थी, विच वॉज वेरी अर्ली फॉर अ बिजनेस लाइक. एंड द आइडियाज़ कि इफ़ यू लुक बैक, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि क्या मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, किस स्टेज ऑफ द बिजनेस के लिए किस टाइप के चैनल्स काम करते हैं, वो Right. सबकी अंडरस्टैंडिंग उस समय नहीं थी. वी वर जस्ट डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वी कुड डू टू प्रमोट आवर ब्रांड. And you had raised money by this time? So we were in talks of raising. So we had a commitment from a couple of angel investors, a 1 CR commitment then. Can you But- name the investors? Yeah, angel name investors? कर सकते हैं. I think they Gaurav Bhatnagar, Ankush Nijavan, they are Gurgaon based, Mhm. super
successful entrepreneurs who built businesses at scale. So they uh, they gave us a commitment to fund the company. So लेकिन क्योंकि हम थोड़े बच्चे भी थे, हम उस वजह से, सो जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट का डील का वो बहुत ट्रांचेस में था. सो वी डिड गेट द फर्स्ट ट्रांच ऑन जस्ट सेटिंग अप द कंपनी ऑफ 10 लाख रुपीस. उस 10 लाख रुपीस से वी आर सपोज टू डू सम वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट कि आ रहा है, डिमांड आ रहा है, एंड देन इवेंचुअली द रेस्ट ऑफ द ट्रांचेस वुड फॉलो. बट उस दौरान में ही उस पैसे का वी डिड नॉट utilize it properly the way an entrepreneur or a business person should utilize. We were slightly casual in our way we handled that money, be it in terms of branding or spending money on these cutleries and paper bags and not focusing or using this money for core business object. So that was one thing that we terribly did wrong. But at the same time, a lot of things were happening in the ecosystem. जो hyper local domain है वो भी थोड़ा struggle कर रहा था. Peppertap was there was a company called Peppertap. I think वो grocery में या किस में था. It was shutting down. A lot of B2B logistics companies like Picker, Shadowfax भी उस समय बहुत प्रायोरिटी भी चल रहा था, तो उनमें भी स्ट्रगल हो रहा था. मनी वॉज नॉट गेटिंग रेज. सो वी उस समय क्योंकि हमने थोड़ा हगा भी बिजनेस में एंड द मार्केट वाज आल्सो, सो द इन्वेस्टर डिसाइडेड कि मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गिव देम द मनी, दे विल नॉट यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, सो दे काइंड ऑफ बैक्ड आउट फ्रॉम द डील. अब उस समय क्या हुआ कि बिकॉज वी वर ऑलरेडी ऑपरेशनल, सो व्हेन you go to investors to pitch your idea, either you are on an idea phase कि idea है and they give you money to test out that idea and just proof of concept के लिए पैसा मिलता है. But because we were already operational, we thought that now when we'll reach out to people, they'll ask us कि तुम चला रहे हो, तुमको कितने orders आ रहे हैं, तुमको क्या दिख रहा है, response दिख रहा है. तो उस समय बिजनेस को रन करने के लिए we figured out कि कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो हमने करण के एक फ्रेंड थे, सो वी टुक सम मनी फ्रॉम देम अराउंड 15-18 lakhs. वी टुक मनी फ्रॉम देम जस्ट टू रन द बिजनेस कि हम ठीक है इसको यूज़ करके बिजनेस चलाते हैं, एंड इन द प्रोसेस लेट्स स्टार्ट रेजिंग फंड्स अगेन, एंड वी एबल टू गेट कमिटमेंट, देन ठीक है विल रिटर्न दिस मनी एंड देन वी कैन कीप ऑन डूइंग दैट. सो वो हमने रेज वो किया, उनसे पैसे उठा लिए. इट वॉज अ लोन काइंड ऑफ एंड इन अनऑफिशियल लोन, राइट, कि विल जस्ट गिव इट बैक टू यू. ब्याज भी नहीं था. इट वाज अ फ्रेंड, इट वाज जस्ट से कि दे दो कि ठीक है, दे वर फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, तो सेट ठीक है, यू कैन टेक दिस मनी, जस्ट गिव अस बैक जब भी तुम्हारे पास होगा, 5 महीने 6 महीने, बिकॉज आइडिया वाज हमें लगा कि 5-6 महीने में लौटा देंगे. सो हमने ले लिया. उसके बाद वी वेंट टू द मार्केट अगेन टू रेज फंड्स. अगेन इनएक्सपीरियंस हो गया, उतने ट्रैक्शन नहीं था, मार्केट डायनेमिक्स भी अच्छे नहीं थे, सो वी वर समहाउ अनेबल टू रेज फंड. हमारे कमिटमेंट्स आए थे बट राउंड क्लोज नहीं हुआ था, एंड बिकॉज वी वर जस्ट रेजिंग 1 CR, तो कोई 25 लाख का कमिटमेंट भी दे देगा एंड राउंड क्लोज नहीं होगा, तो देयर इज नो पॉइंट फॉर दैट पर्सन टू पुट इन दैट 25 बिकॉज इट विल इवेंचुअली बर्न आउट, राइट. सो उसके कारण फंड पूरा क्लोज नहीं हुआ. एंड देन बिकॉज हम बिजनेस चला रहे थे, सो हम तीनों कॉलेज से मूव आउट कर चुके थे. वी वेकेटेड आवर हॉस्टल. हम कोई क्लासेस नहीं जाते थे. वी जस्ट विजिटेड द प्रेमिसेस टू गिव आवर एग्जाम्स, एंड वो एक ड्यूरेशन में मेरे बहुत सारे कोर्सेज में मेरे को फेल लगा. अटेंडेंस कहीं नहीं थे, सब में अटेंडेंस 20% 25% अटेंडेंस थे, ग्रेड डाउन होने का. सो अब बिजनेस भी नहीं चल रहा था. देन वी डिसाइडेड वी स्टिल इन कॉलेज. हमने नौकरी भी छोड़ दी थी. वी ऑप्टेड फॉर डेफर्ड प्लेसमेंट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन IIT Delhi brought out a new system where you could defer your placement. If you want to start something of your own, you can defer your placement by up to 2 years. वर्क आइडिया पे काम करो, चीज़ें करो, नहीं पिक किया तो अगले साल या अगले के अगले साल किसी भी एक टाइम आके आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो. सो दैट वाज अ गुड थिंग. हम बहुत ही फील में थे कि हमें तो कुछ बनाना ही है, तो हमने नौकरी वोकरी के लिए ऑप्ट आउट कर लिया. जब हम यहाँ पे आए 1 साल हो गया, बिजनेस भी कुछ नहीं हो रहा, वी रियलाइज कि हम तीनों के ऊपर 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए का लोन है, नौकरी भी नहीं है और डिग्री भी नहीं निकल रही है क्योंकि लास्ट ईयर में है, सब में ग्रेड नहीं लगे हुए हैं, क्लासेस भी नहीं गए, तो कोई आइडिया नहीं है. सो देन वी डिसाइडेड कि इट्स टाइम दैट वी शट शॉप एंड वी मूव ऑन, एंड इट्स बेटर दैट वी गेन मोर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. तब हम कॉलेज गए. देन आई वेंट टू कॉलेज. April 2016 में आई थिंक वी डिसाइडेड टू शट शॉप. देन आई वेंट टू कॉलेज. 1 महीना मई में एग्ज़ाम्स होते हैं. किसी तरीके से सब प्रोफेसर्स के सामने जाके गिड़गिड़ाया, रोया. आई स्टिल रिमेंबर. तो बेसिकली
तो जो भी दिया, मेरा बीटेक प्रोजेक्ट था, जो बीटेक प्रोजेक्ट इज़ कंपल्सरी, उसमें मेरे को एफ मिल गया था, एंड आई वाज डूइंग इट अंडर प्रोफ हु वाज सुपर चिल, राइट? जिसका भी किसी का कुछ नहीं होता है वो उस प्रोफेसर के अंडर करता है एंड उसको नहली या दसी लग जाती है, एंड आई गॉट एन एफ विद दैट प्रोफेसर बिकॉज आई डिड नॉट डू एनीथिंग। तो वहाँ पे गया, आई जस्ट ट्राई टू गिव ऑल द एग्जाम, जस्ट ट्राई टू गेट माई डिग्री, बिकॉज घर Right. वालों का प्रेशर ये था कि तुम्हें जो करना लाइफ में करो, डिग्री तो ले लो, Right. ठीक है? अब वो दे वर राइट एट देयर एंड, तो आई ट्राई टू डू दैट, बट सेमेस्टर खत्म हो गया, उसके बाद भी आई I was not able to complete my credits that was required for a degree. There were still 2 courses left. Then जो summers का 2 महीना होता है, उस 2 महीना में जाके courses किए मैंने, 2 कोर्स उठाया, उसके लिए किया, समर में धूप में वहाँ पे कॉलेज में रह के गर्मी में 2 महीना निकाला। आई स्टिल रिमेंबर टाइम कि जब ये एक्स्ट्रा समर कोर्सेज होते हैं, समर कोर्सेज के लिए यू हैव टू गो एंड टेक अ परमिशन फ्रॉम एन एचओडी ऑफ योर डिपार्टमेंट सेइंग कि आई अलाउ देम टू टेक समर कोर्सेज बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आई वेंट टू द प्रोफेसर, मी एंड माई फ्रेंड, राइट? वी वेंट देयर, वी टोल्ड देम कि हमें ऐसा ऐसा करना है। वो बोले तुमने क्यों नहीं कोर्स किया, तुम्हारे ऐसे ग्रेड्स कम क्यों है ये? सो शी सेड कि ऐसा था तो ऑप्ट आउट करके तुम्हें करना चाहिए था, तुम क्यों कॉलेज के साथ में कर रहे हो ये चीज़ें करो? हमने बोला कि मैम ऐसा नहीं होता, वी वर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग इज, एंड आई रिमेंबर शी सेड, इट वाज अ लेडी प्रॉफ, शी सेड कि तुम्हें जब भी कोई आएंगे, बच्चे आएंगे, तुम लोग को उनके सामने खड़ा करके सेशन करवाना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ भी बनना, इनके जैसा मत बनना। वो जो 3 इडियट्स का सीन है ना, प्री राजुलाइजेशन, तो इनके जैसा मत बनना कि ये सब चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इनको गेम कर रखा है सिस्टम को, कुछ भी करना इनकी तरह मत बनना। तो ऐसा किया फिर उन्होंने? ऐसा किया नहीं, ऑब्वियसली। वो क्या, इट वाज अ स्टेटमेंट, बट आई थॉट कि ठीक है, शी हैज़ हर ओन रीजंस टू से दैट। सो उस तरीके से था। समर्स में फिर हमने किसी तरह से डिग्री निकाली, 2 कोर्सेज बचे थे, कंप्लीट किया, एंड देन वी फाइनली गॉट द डिग्री। I have one question on that. Do you think if you were to enter the same space now, runner bhi wali is, मतलब hyper local market में, do you think you can probably do a good job at it now because of your learnings and failures Yeah, in the past? definitely. मतलब देखो, entrepreneurship is a journey in itself, right? Even if you ask me today where we are, if Pawan, how will Pawan become a billion-dollar company, or what will the scale or the day-to-day operations look like? I don't know. And how are we equipped enough to manage that? I don't know, right? But it is a journey, right? You grow, you learn from your experience, you learn from your mistakes, and I think अगर हम उस समय भी करते, if we were able to raise funds, हम करते, समय लगाते, बहुत गलतियाँ करते, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि हम सीख सीख के कुछ कर लेते। आई डोंट नो Agreed. कि वी वे इफ यू वुड हैव बीन एबल टू compete with डंजो, उससे बेटर करते, उससे खराब करते, आई डोंट नो, इट इज़ ऑल कॉन्टेक्चुअल, बट आई थिंक had we had we been given that money, I think we would have still some time with us to learn from our mistakes and grow that business. No, I mean in a way that if you were to enter the same market now today, so I'm pretty sure you would be running 6 months in like ahead of a new founder Right. in the same space. Right. For example, let's say Keshav were to enter the same market of hyperlocal, he would not know where to hire these bikers from, where to gauge the customers from, क्या approach लेनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चलती. I think that is much more important to know than to know कि क्या चलता है. Right. क्या चलता है तो सब बताते हैं, क्या नहीं चलता वो कोई नहीं बताता. Right. So why I'm asking this is I have an in like अभी एक मुझे मतलब काफ़ी टाइम से आइडिया है मेरे पास एक, वो I just want to run it by you. What do you think of that idea and how, if you would think that would work, and how would that work? So let's say Nehru Place as a market. We all know how busy Nehru Place is. We've had our office there for over 2 years. Yeah. You and I. So we know कि वहाँ पे एक दिन भी शांत नहीं होता. Sunday भी बहुत भरा हुआ होता है. So we know कि it's a very valuable market to people. Who are these people? They're mostly people who need something or related to computers. Mostly it's not the consumer. Mostly it's Electronics market. हाँ, it's the person repairing the computer जो जाता है नेहरू प्लेस. तो आज तक आई फील कि मतलब मैंने जितने लोग, मेरे कुछ दोस्त थे एक्चुअली पुरानी दिल्ली में जो अपना कंप्यूटर का ये रिपेयरिंग का बिजनेस चलाते थे. हर हफ्ते हर रोज़ उनकी 1-2 ट्रिप लगती थी नेहरू प्लेस की. 2 भाई थे, या तो एक जाता था या दूसरा जाता था. कभी कभी दिन में दोनों को जाना पड़ता था एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, बिकॉज यू नीड टू प्रोक्योर द पार्ट and you need to give it to your party. So let's say that's one problem statement. So if there are hyper local people to solve that problem, like Swiggy for computer parts, and the business model seemed very straightforward to me कि हर मोहल्ले में कम से कम 1000 कंप्यूटर रिपेयर शॉप्स होती हैं.
आप इनको टारगेट करो, आप इनको बोलो तुम्हें कहीं नहीं जा रहा, आप हमें बताओ आपको क्या चाहिए, हम लेके आएंगे, 20 रुपये पर विजिट चार्ज करेंगे या जो भी चार्ज करेंगे। और फिर मतलब अगर आपने दिन की मतलब उसका आपने टाइम बचा लिया, जो टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं ट्रैवल में, जाके वो लाने में, पार्ट लाने में, और इसको कोई मार्केट प्लेस भी सॉल्व नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत निटिग्रिटी पार्ट्स आते हैं, मतलब एक एक पार्ट लेने के लिए जाना पड़ता है। तो वो ऐसा भी नहीं कि आप हर चीज़ अमेजोन से मंगा लोगे, और हर चीज़ अमेजोन पे होलसेल पे मिलती भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बंदे को 6 पार्ट चाहिए हो एक साथ, तो होलसेल मिलेगा। Do you think it's a viable idea? B, how do you think you would pursue it given your experience with Runner B? And C, how much do you see it scale if it's like for the first two mm, parts of the question are like are So, yeah, positive? देखो डेफिनेटली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट, देयर इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिकॉज पीपल डोंट वैल्यू देयर टाइम एंड समय जाता है, एंड दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज वॉज वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व विथ रनर भी, कि अगर आपको घर से जाके वापस चार्जर लेके आना है, लोग को मैं बोलूँगा मेरे को 60 रुपया दो डिलीवरी का, लोग बोलते थे 60 रुपया क्यों देना है, बट दे डोंट रियलाइज कि मेरे को 40 रुपया करके ऑटो से जाना पड़ेगा, 40 रुपया दे के आना पड़ेगा और मेरा 1 घंटा लगेगा। सो डेफिनेटली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बिजनेस बिल्ड करने के लिए थोड़ा my perception of business has changed a lot over the years, right? If you talk about my experience as an entrepreneur at Pawan, what I called a good business has changed over the years, ठीक है। I have moved away कि जब शुरू में होता है आपको बहुत फैंसी चीज़ें दिखती है, बहुत ये चीज़ें लिखती है, बट जैसे जैसे आप और थोड़ा आपको धक्का लगता है, आप गलतियाँ करते हो, then you start questioning business on more deeper level. So one thing, whenever we think of starting a business, one parameter is very important for me, according to me, ठीक है। सॉल्यूशन फैंसी नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुपर डीप होनी चाहिए। एज entrepreneurs वी टेंड टू फोकस अ लॉट ऑन द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट, कि सॉल्यूशन को इतना क्रेजी बना देते हैं कि यहाँ से रियल टाइम दिखेगा, ये यहाँ से ऐसे दिखेगा, इसमें ये ऐसे इनपुट आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। सॉल्यूशन डज नॉट हैव टू बी सेक्सी, राइट। योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज़ टू बी रियली 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 डीप, राइट। जहाँ भी जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत डीप है, वहाँ पे एक बेसिक सॉल्यूशन भी काम कर सकता है, ठीक है। सो द कॉन्टेक्स्ट इज कि व्हेनेवर यू थिंक ऑफ एन आइडिया, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट, एंड आई हैव मेड दैट मिस्टेक, आई डोंट माइंड एडमिटिंग इट, कि सॉल्यूशन बहुत अच्छे नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले बहुत डीप होना चाहिए। व्हाट यू आर एसेंशियली टॉकिंग इज कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे है, हाँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकिन क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेहरू प्लेस पे जाने का प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज जस्ट लैक ऑफ टाइम दैट आई हैव टू विजिट दैट स्टोर, इज दैट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? और द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि जो रिपेयर का वर्क है वो कहीं पे भी नहीं हो सकता है? इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है? वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज प्योर लैक ऑफ टाइम, देन हैविंग somebody who can do that job for you definitely makes sense, right? But again, because you are dealing with electronics item, one perception about Nehru Place market is कि fraud market है, Right. ठीक है। You don't know good shops that will actually do that job for you and at the lowest price possible, because बहुत धान लिया है, आपके ओरिजिनल मैं पार्ट्स उसकी बात निकाल नहीं लिए कर रहा जाते हूँ, हैं, वहाँ पे जो कर शॉप देते से रिपेयरिंग उनकी बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जैसे आपके एरिया में गुड़गांव में एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप है, हैं। ठीक है, वो भी अपना पार्ट लाता होगा तो किसी मार्केट से लाता होगा, हम्म। वो तो अपने सिर्फ रिपेयर शॉप खोल के बैठा हुआ है। अच्छा, सो यू टॉकिंग अबाउट जो लोकल creating, लोकल रिपेयर शॉप्स है, नेहरू प्लेस की रिपेयर शॉप नहीं, हम्म। नेहरू प्लेस का इक्विपमेंट मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो अंडरस्टूड। जैसे वो So it's रेस्टोरेंट kind of है, a B2B अप्रोच की, तो Exactly. हमारे शॉप्स के लिए उनको जो अगर पार्ट्स चाहिए। एग्जैक्टली मैं अगर शॉप वाला हूँ हम्म। तो मैं आपके एरिया में बैठा हूँ, ठीक बिल्कुल। है, मैं अब एक आप मुझे बोलोगे मेरा सीपीयू खराब हो गया, सीपीयू में रैम खराब हो गई, मुझे रैम बढ़ानी है, अब मेरे पास नहीं होगी, राइट, बिकॉज आई एम नॉट द मैन्युफैक्चरर, राइट। आई एम जस्ट द रिपेयर गाय, ठीक है, तो आई विल हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर, तो टू गेट दैट रैम आई विल हैव टू like spend 50 rupee worth of or 50 to 100 rupee worth of petrol अंडरस्टूड and time. ठीक है, so I think my bad, I हाँ। misunderstood the question. So definitely ये भी है, so it is a obviously it is आपका ये क्या B2B डोमेन है, सिर्फ जहाँ पे hyper आप local। रॉ मटेरियल्स तरीके से प्रोवाइड करें, एंड यू कैन स्टार्ट विथ हाइपर लोकल, राइट, दैट इज डेफिनेटली अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट कैन हैपन, कि यू आइडेंटिफाई 3 or 4 हब्स जहाँ पे इस चीज़ के सब पार्ट्स मिलते हैं, एंड देन उस हब के अलावा बाकी लोगों को आप बोलो कि यू क्यों नीड जाओगे? सो एंड सो पार्ट्स, बट यू नीड टू गो, आई कैन जस्ट गेट यू दिस, you can start with that, right? You can start charging money in terms of the delivery or the time जितना भी उस बंदे का लगेगा, you can start with that, that is definitely है, and the gradual progression for the business can be कि once you are able to uh,
segregate or able to combine the demand, what you can do is you can start going up the funnel, and instead of taking that parts from a shop in Nehru Place, you can start taking it from people who supply it to Nehru Place shop, because वो भी खुद तो बनाते नहीं है, suppliers राइट. एंड इवेंचुअली अगर आप पूरे पार्ट्स के मार्केट पे देखोगे, पार्ट्स का एक मार्केट है जो ब्रांडेड मार्केट है. सपोज कि लेनोवो के लैपटॉप का लेनोवो की बैटरी, Yeah. या सैमसंग के लैपटॉप का ये मदरबोर्ड, ये चीज़ें. एंड देन देर आर लॉट ऑफ लोकल पार्ट्स. आपके पास जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यू हैव demand with you. When you have volume, just to increase your margins and to make business become more sensible, you can start going up the funnel and start sourcing these parts directly from this. And for unbranded, you can start sourcing it from China, because it is very easy nowadays. You can source it from China, you can just white label it, print your own name, and you can start giving it to people. So I think that is definitely there. You can do this. The way to start with this is again with a cluster approach, right? You don't have to do it everywhere, because it is an operations business. You need somebody running on ground, right? So if you have to do it, if you open it at 10 location, it will become very difficult. And you also have to understand कि requirement कितनी बड़ी आती है. क्या 100 पार्ट्स की रिक्वायरमेंट के लिए लोग उसको लेने के लिए जाते हैं, क्या 2-2 पार्ट के लिए भी लेने के लिए जाते हैं? अगर द बिहेवियर इसकी 2-2 पार्ट के लिए लेने के लिए जाते हैं, देन you have to think of ways कि how do you club 10 orders for that to make economic sense. And for you to be able to club orders, the orders should come from the same locality, वरना वो बंदा दौड़ते रह जाएगा. अगर वॉल्यूम ज़्यादा आती है, then it can still be one on one. ठीक है. So you have to understand कि what is the right way to approach the business. Is a cluster approach more sensible कि you open से आपने वेस्ट दिल्ली स्टार्ट किया, आपने वेस्ट दिल्ली के ही सब शॉप्स के साथ काम करना स्टार्ट किया, and you just collate the demand, and then you send somebody to Nehru Place, get it sourced for them, and then you supply it to them. So I think it can be done. A lot of things. I think business के बहुत सारे problem statements और deeper समझ के पता चलेगा कि क्या कैसे होता है, नहीं होता है. दो मैं- रेवेन्यू स्ट्रीम हाँ, नहीं। दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स आप बोल रहे हो इसमें कि एक तो मैं प्रीमियम चार्ज कर सकता हूँ डिलीवरी का, और एक में इवेंचुअली पार्ट्स में भी चार्ज कर सकता हूँ. बिल्कुल. वन साइड डायरेक्ट वुडली डील विद द मैन्युफैक्चरर्स. Right. तो दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो सकते हैं. And let me make you uncomfortable now. Would you invest? I would. Why not? देखो, the idea is for the आप समझो कि angel invest बढ़िया. आज के में, and but the main point there is I should have money. भाई होते तो कर देता. होते तो कर देता. Because देखो, the idea is कि आज के डेट में why I am saying that is because किसी ने मेरे पे भी भरोसा किया है. राइट. ठीक है. आई हैड नथिंग टू प्रूव देम कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. एज एन एंटरप्रेन्योर, जो वन आई थिंक देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू, and I'm still trying to question and answer that for myself, and that is hunger, right? Hunger is, I think, the only requirement for you to become an entrepreneur, because skills can be picked up. And I say this to every new hire that I get. I have done a lot of experiments while hiring, where I have hired freshers, or I have hired people who did not have any prior knowledge in that domain for critical areas in my business. Say for marketing, I have hired people who were, because that is where I have grown in my life, right? Because nobody, I have not taken, if I've done marketing at my HQ, if I do marketing or growth at Pawan, no, I have never taken a course. I have not done marketing academically, right? What I've done is I have learned it by myself. Right. And for you to be able, कोई rocket science नहीं है, right? आज के डेट में कोई भी skills है, you can easily pick it up, and there are enough and more resources, there are enough and more people out there who can help you do that. All you need is sheer hunger, right? Sheer conviction to build something. जिसके पास भी वो है, आई थिंक वो बिजनेस बना सकता है. उसके लिए कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है कि स्टार्टिंग लाइफ जिसके पास बैकग्राउंड एक्सपीरियंस उसकी ईजी हो जाए, बट आई डोंट थिंक दैट विल decide the end outcome for any person. So purely on that objective, purely on the merit of कि हंगर है लाइफ में कुछ करने का, कुछ बनाने का, उस पैरामीटर आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट. उसके बाद फंडामेंटल्स पे जाके बिजनेस, एंड इफ आई विल इन्वेस्ट, जो भी मैं छोटे मोटे अमाउंट डालूंगा वो बहुत अर्ली डालूंगा. तो मेरे पास अर्ली डालने के लिए भी मेरे पास पैरामीटर्स बस वही है. प्योरली इन टर्म्स ऑफ द आइडिया आई कैन ऑलवेज गिव माई, अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हो विथ माई अंडरस्टैंडिंग जो मेरे को लगता है कि बहुत ही फुलिश है या फिर इट विल नॉट मेक सेंस, सो आई विल शेयर माई ओपिनियन first, right? And we'll try to help you find the right thing there, or maybe figure out something which might
make more sense and also fits well with your expertise and what you want to do in life. बट अगर उसके बाद भी हंगर है, कन्विक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आउटलायर्स ही होते हैं जो बिजनेस बनाते हैं. आई डोंट थिंक कि सेफ्टी से वही है. 10 people will tell you कि दिस इज नॉट पॉसिबल. वन यू डू इट दिल आस्क यू हाउ डिड यू डू इट, राइट. वो Right. वाली फंडा होता है जो बहुत ग्लोबल ज्ञान होता है. आई थिंक दैट इज ट्रू कि इट ऑल यू नीड इज अ कन्विक्शन टू बिल्ड अ बिजनेस एंड यू कैन डू एनीथिंग. ठीक है, ये हमने एक पहले पॉडकास्ट में भी पूछा था एक और गेस्ट से, ही वाज डॉक्टर रेहान सूरी. तो उनसे पूछा था कि आप अगर डिफाइन करो एंटरप्रेन्योर को तो आप कैसे करोगे. सो फॉर यू, हाउ डू यू डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर? यार ट्रिकी क्वेश्चन है. आई थिंक कि आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट. देखो, एज एन entrepreneur is maybe somebody who has enough courage, right, to defy the odds, go against the wind, right, and create something and have that courage to build something from scratch. And I think that is what is an entrepreneur for me. Somebody who has the courage to go against the odds and create something from scratch. बहुत सारी चीज़ें हैं ऑन द रोड, बहुत सारी चीज़ें लोगों को हेल्प मिल सकती है, ये चीज़ें कर सकते हैं, बट ये जो जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर वन थिंग आई कैन से इज कि मेरे भी जो परसेप्शन, हैविंग एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एट डिफरेंट लेवल्स, बट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज एंड व्हाट a business requires has changed immensely over the years, right? So एक चीज़ ये होता है कि आउट ऑफ, इफ आई लुक बैक 1.5 years, 5 या 10 दिन ही ऐसे होंगे जिस दिन हम बहुत सुपर पम्प्ड अप रहे थे. बाकी दिन कुछ ना कुछ फटा ही है सिस्टम में, राइट. सो एवरी डे यू आर just going to receive bad news, right? You just going to receive no things कि क्या काम नहीं कर रहा है, right? So somebody who can just show up at work every day is I think what an entrepreneur is. In spite of all the odds, in spite of everything that can go against you, somebody who has the courage to just wake up every day and show up at work. And I think that is what an entrepreneur is, who can do that consistently for months and years. इज आई थिंक. एंड अगर वो करते रहोगे तो ये नहीं चला तो कुछ और चल जाएगा, वो नहीं चला तो कुछ और जाएगा, यू अल्टीमेटली फिगर दैट आउट. बट समबडी हु कैन जस्ट डू दैट consistently year after year, month after month is I think somebody who's an entrepreneur. लव इट. शुद्ध हिंदी भाषा में ढीठ होना चाहिए. हीट होना चाहिए. बंदा ढीठ हो. When you hear the word entrepreneur, I know you are one too, and we all are here in, मतलब all three of us are. Even for like Mukesh is also freelancing now. So who comes to your mind when you hear the word entrepreneur? Yeah, The first if person you that comes if to you mind. asked me 2 years 3 years back, I would say Sachin Bansal, I would say Bhavesh Agarwal, I would say Ritesh Agarwal, right? But if you ask me today, I would say Dhirubhai Ambani, right? I would say Kumar, I would say Birla, right? I would say Nikhil Kamath. I would still name Sachin Bansal, I would still name Bhavesh Agarwal, but there are a lot of names that have got added in there. I will name my grandfather Right. as an entrepreneur in that, right? Right. जो मैं पहले नहीं बोलता, because आज की डेट में I have kind of become anti word entrepreneur and startup per se. ठीक है, मेरे को एक ही वर्ड अब लगता है कि जो सही है, जो चलना चाहिए, वो है धंधा. धंधा. राइट, सेम. ठीक है, जो धंधा बनाता है. और धंधा क्या है? ये फैंसी चीज़ें, ये पूरा all the dazzle and all the जो फैंसी चकाचौंध है इस वर्ड्स के अराउंड, वो नरेटिव के अराउंड, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू दैट फॉर दैट परसेप्शन एंड देन रियलाइज कि भाई वो उसको छोड़ के सब कुछ है. ये धीरे धीरे मार्केट जैसे जैसे करेक्ट हो रहा है तो वो फ्रूगली बिजनेसेस पे वो फोकस आ रहा है Profitable कि business पे ही जा रहे हैं हम तो. हाँ, प्रॉफिटेबल profit- बिजनेस, बेसिकली द आइडिया इज कि स्टार्टअप में लोग आजकल बहुत नरेटिव कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देखो, ये देखो. आई एम सेइंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ उसको नॉर्थ स्टार मेट्रिक नहीं मानो. द आइडिया इज कि पैसा, रेजिंग फंड्स इज important, but one should raise funds to grow the business, Exactly. not to identify the business, and it should not come at any cost. So when I say धंधा saying कि see, you can, आज की डेट में अगर if you see Ambani, if you see जिस तरीके से उसने जियो भी लॉन्च किया, he did burn a lot of money for a time, but inherently the business fundamentals were intact in that business. So you have to question कि जो आपकी business fundamentals है वो intact होने चाहिए. उसके बाद आज आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमा, that is okay.
ठीक है, बिकॉज विथ ग्रो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो कम एट स्केल, बट जस्ट सेइंग कि आई विल चेस स्केल विदाउट थिंकिंग कि पैसा कहाँ पे बनेगा, विद अ फ्यूचर एम कि पैसा बन जाएगा, दैट आई थिंक इज नॉट द राइट अप्रोच, एंड एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा उसके अराउंड ज़्यादा स्टिच कर दिया गया है. सो द आइडिया इज कि Exactly. नॉट per se laser focus on profitability but questioning कि business fundamental पैसा कहाँ पे आएगा, and is there a way कि मैं जो इतनी चीज़ें देख रहा हूँ कि मैं पैसा x कमाऊंगा, खर्च y करूंगा, तो क्या x y से बड़ा है भी कि नहीं है, या होगा भी कि नहीं होगा, just questioning that is very important. Yeah, true. मेरे दिमाग में पता कौन आता है? उत्कर्ष. मेरे दिमाग में सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मैंने सुना बहुत था, और मैंने 10 कंपनियों में काम किया है. लेकिन आई रियली फील देर इज़ अ गुड एंटरप्रेन्योर एंड देर इज़ अ बैड एंटरप्रेन्योर. लाइक सम पीपल, आई मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगा उनका नाम लेके, लेकिन दे शुड नॉट डू एंटरप्रेन्योरशिप. इट्स नॉट फॉर देम. जितना वो स्ट्रेस लेते थे, जितना वो अपनी जान पे बना लेते थे, फिर दूसरों की जान हराम कर देते, जीना हराम कर देते थे. तो आई डोंट थिंक इट्स कट आउट फॉर देम. बट उत्कर्ष से मैंने सीखा कि कंपनी चलती कैसे, ग्रो कैसे होती है, ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है. मतलब उत्कर्ष ने मुझे इंटरव्यू में मेरे बोला था कि देख भाई, कंपनी 6 महीने में बंद भी हो सकती है और चल भी सकती है अगर फंड्स उठ गए तो. लेकिन सिंस ही हर्ड माई स्टोरी, आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी ट्रबल्ड बैकग्राउंड, तो ही टोल्ड मी कि जो भी होगा तेरी लाइफ पे फाइट नहीं आने दूंगा, मेरे कनेक्शन है इतने कि मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा, तेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हार्म होगी. दैट इज़ माई वो थिंग टू टेक केयर ऑफ. तो आई थिंक दैट इज़ वॉट इंस्पायर्ड मी टू, लाइक पहले मैं करना चाहता था स्टार्टअप, बट मैंने कभी ढंग से समझा नहीं था कि क्या स्टार्टअप होता क्या है. आई थिंक MyHQ में मैंने देखा, जितना क्लोजली मैंने देखा कि स्टार्टअप होता क्या है, फिर ग्रो कैसे होता है, फिर सस्टेन कैसे होता है, मतलब कैलामिटीज़ भी कैसे सर्वाइव करता है. मैं कोविड सर्वाइव किया था, आपके सामने ही हुआ था सब कुछ, मतलब जीरो पे आ गया था मैं एक दिन, एक रात में. एंड देन वी हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच, कि वर्चुअल ऑफिस पे फोकस होने लग गया सब कुछ. सैनिटाइजर बेचा है, सैनिटाइजर बेचे, सब डिसइंफेक्टेंट्स कुछ. बेचे हैं. स्टेशनरी बेच रहे थे, प्रोडक्ट्स बना रहे थे, ई-कॉमर्स बना रहे थे MyHQ के नाम का, जो बिक जाए इस वक्त, तो बस पैसे लाने. तो दैट अप्रोच आई थिंक चेंज्ड मी, कि एट द एंड ऑफ द डे है दुकान, दुकान को दुकान की तरह चलाना चाहिए. तुम सोचो दुकान को MNC की तरह चलाओगे, मुश्किल है बहुत. But right balance, I think कि the idea what mistakes do a lot of times we do, and I've also done that mistake at Power, कि कोर चीज़ों को, जो धंधा है, पैसा कहाँ पड़ेगा, धंधे वाले की तरह सोचना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज द शेयर कन्विक्शन टू सर्वाइव एंड फाइट इट आउट नेक्स्ट डे, एंड जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे जितने फैंसी ड्रीम्स है, अगर कंपनी बचेगी नहीं तो तुम वो कर ही नहीं पाओगे, राइट? True. So for you to be able to even achieve or chase those dreams, you have to make sure that you survive. And for you to be able to survive, धंधा चमकना और धंधे की तरह उसको देखना बहुत ज़रूरी है. And once you do that, फिर सारी चीज़ें करो, ब्रांड भी बनाओ, स्ट्रैटेजी भी अटैच करो, लॉन्ग टर्म कल्चर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ. बट अगर धंधा नहीं हो, ये सब बना दिया तो कुछ नहीं चलेगा. अगर तुमने धंधा बना दिया, वो चीज़ें नहीं है, तो भी तुम बहुत टाइम के बाद स्केल नहीं कर पाओगे, उसको बड़ा नहीं कर पाओगे. सो राइट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, बट एट वॉट स्टेज, what priorities or what weightages do you give to all of these channels is very important. कि किस समय तुम धंधे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, और किस समय जाके तुम इन फैंसी चीज़ों की, ब्रांड कितना अच्छा है, तुम्हारे कल्चर कैसा है, क्या तुम्हारे पास लोग आ रहे हैं, क्या स्टिक कर रहे हैं, तुम ग्रो कैसे करोगे, डाइवर्सिफाई कैसे करोगे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो यू नीड अ राइट बैलेंस, and you have to figure out what will take more weightage at what time in the life of a business, right? So that is very important. So Utkarsh, I think, is very good at that. You understand. So Utkarsh and Vinayak are right combination, right? Somebody who comes with a long-term perspective, and somebody who makes sure कि आज क्या होगा, ये चीज़ होगा. So that balance between the founders is very important. तो इसलिए बहुत होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये जैसे I am pro मल्टीपल फाउंडर्स, 2 फाउंडर एटलीस्ट, 3 फाउंडर, बिकॉज यार एंटरप्रेन्योरशिप बहुत लोनली जर्नी है, क्योंकि आपको हर दिन बैड न्यूज़ ही मिलता है. सो यू नीड समबडी टू पिक यू अप एंड टेल यू कि भाई कोई बात नहीं, करते हैं, ये चीज़ें करते हैं. धंधे में, हमारे पुराने ज़माने में धंधे में लोग एक से स्टार्ट कर लेते हैं. माई ग्रैंडफादर स्टार्टेड अलोन, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड. लेकिन वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज यू आर ग्रोइंग, यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस जिसमें डे वन से तुम देख रहे हो कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, घर में पैसा आ रहा है. सो यू टेक लिबर्टी ऑफ टाइम, सेइंग कि आई कैन टेक 5 years, 7 years, 10 years टू बिल्ड दिस बिजनेस, राइट? एंड धीरे धीरे करूँगा, ये करूँगा, सो मे बी आई कैन रन दिस अलोन. बट आज के टाइम में, इफ यू वांट टू डू इट दैट वे, यू कैन डू इट अलोन. बट इफ यू वांट टू डू इट, you can do it right, but you want to do it fast also, then you need multiple More hands. more hands. I think I would just like to understand from you, being an IIT person and a multiple times entrepreneur, that how the idea that we were discussing about the hyperlocal, hypothetical hyperlocal business for Nehru Place or markets like Nehru Place,
if you were to break down the TAM, because हर कोई बात करता है TAM क्या होता है, total addressable market, but very few people actually help others people identify how to approach in identifying the TAM, and you've been a growth marketer yourself for MyHQ as well. So आप कैसे इसका, अगर आपको TAM break down करना होगा इस particular business idea का, तो आप क्या approach लोगे और क्या मतलब search करोगे या क्या sources देखोगे and to come at a X number of TAM? राइट। सो यार देखो, टैम के लिए क्या कि टैम as an exercise is a very extensive exercise, and there was one very successful founder who told us one day while having some discussion around the TAM, saying is ki the way you do your TAM exercise denotes how qualified or how experienced or how mature you are as an entrepreneur, and how much clarity do you have of your business, right? And who do you want to target? And So your customers and your also. customers, exactly, That's who so do true. you want to target and what do you want to build. So TAM is a very extensive exercise. So I think you first and the foremost thing, it is very difficult for me as an outsider to just listen to an industry and just get hold of an industry and say कि this would be the TAM, right? This is, I think, the first narrative. But if I have to give it a shot, saying, so देखो टैम में भी दो तीन तरह की चीज़ होता है। टैम होता है कि everybody, what is the market, what are the number of users who are facing this problem and might need a solution. It can mean they are using another solution right now. B, they do not realize that they are facing this problem. Or B, they're not looking for a solution. They realize that there is a problem, but they're not looking for a solution, right? So the TAM includes all of those things. So if for that quick commerce related to that accessory parts, you have to understand, for you the TAM would be in terms of how many businesses are there who need regular supply of raw materials or electronic parts on day-to-day basis, right? So that is the first and the foremost region, right? You would not want to include individuals who also do, just say for me, my father-in-law is very uh, interested in just decoding this stuff. He has a big toolkit that a normal mechanic would also not have. He has everything with him, and whatever he has, he just opens it up and sees कि क्या है। कुछ भी चीज़ें खराब होती है वो खुद सही करने की कोशिश करते, ये चीज़ें करते। So there are a lot of individuals also who might need such services कि मेरे को ये लाना, मैं क्यों 30 किलोमीटर दूर नेहरू प्लेस जाऊँ जब व्हेन समबडी कैन गेट इट डिलीवर्ड। और या शॉप, किसी तुमने शॉप को लाके दिया और शॉप से तुम यूज़र को लाके दे सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। सो टैम के लिए सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द यूज़र बेस, व्हाट आर द नंबर ऑफ यूज़र्स हु फेस दिस प्रॉब्लम एंड माइट बी विलिंग टू टेक दिस सर्विसेज। हो सकता है कि वो आज ऑलरेडी दूसरी तरीके से इसको फुलफिल कर रहे हो सकता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको ऐसा सॉल्यूशन नहीं पता है, सो देर जस्ट डूइंग एवरीथिंग दैट दे कैन इन देयर कैपेसिटी। तो ये एक टैम का एक्सरसाइज होता है फॉर अस। इफ़ वी हैव टू लुक एट कि टैम हमारे लिए क्या होगा, फॉर पावन के लिए क्या होगा। सो हमें देखना है कि किसके किसके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। अब इस तरह से देखोगे तो हर एक आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, राइट? देयर इज अ फेमस सेइंग दैट ईदर यू आर इन अ प्रॉब्लम राइट नाउ, और यू आर walking out of a problem, or you are either walking into a problem, right? प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से अगर मैं टैम करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा पूरी भारत देश की जनता मेरे लिए टैम पूरी है, right? दुनिया। पूरी दुनिया मेरे लिए टैम है, राइट? बट दैट इज नॉट नेसेसरली हाउ यू लुक एट इट। सो आपको और भी फिल्टर्स देखने की। नाउ इफ़ यू आर बिल्डिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन क्या है, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन क्या है। द सेकेंड थिंग इज हाउ मेनी ऑफ देम रियलाइज कि इनके पास ऐसे सॉल्यूशंस है, या इन सॉल्यूशंस के लिए कुछ पे करने के लिए भी है। क्योंकि आज के डेट में अनलेस देयर इज अ बेसिक डिस्पोजेबल इनकम विथ यू, यू वुड नॉट वांट टू इन्वेस्ट ऑन सच प्रॉब्लम, बिकॉज आज भी तुम बॉडीली प्रॉब्लम्स, इस सब टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए इन्वेस्ट कर दोगे। आज के डेट में घर में किसी को बीमारी हो गया, अब चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, उसको अगर 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे इलाज के लिए, तो वो 5 लाख रुपए खर्च करेगा ही करेगा। राइट। तो ऐसा नहीं है कि अब वो स्विगी से ऑर्डर भी करेगा, right? So it is not just about, so you have to understand what amount or what percentage of people also have that X disposable income and have achieved something in life, so that they can start questioning on all of these aspects and are also willing to pay for this, right? So this is the TAM का कैलकुलेशन में बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि आपके लिए किस यूज़र को टारगेट करना चाह रहे हो, उसके क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, एंड क्या वो फिल्टर्स है जिससे मैं बाइफर्केट करके, आई डोंट हैव टू पेंट अ रोजी पिक्चर सेइंग कि ये इतना बड़ा टाइम है। अ लॉट ऑफ
people, a lot of entrepreneurs, we also did that mistake earlier on इन्फ्लेट कि करते हैं टैम इन्फ्लेट को। करना, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली, क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत छोटा नहीं हो जाए, ये चीज़ें नहीं हो जाए। तो दैट इज़ वन। टैम के बाद एक सैम का भी फंडा होता है, विच इज़ सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। अब सर्विसेबल में ये होता है कि आज मैं किसको कर सकता हूँ, आज कौन जीत रहा हो, तो उसमें भी वो होता है कि कौन ऐसे बिहेवियर्स आज शो कर रहे हैं जो इमीडिएटली आज मेरे लिए करेंगे। सो मेरे लिए सैम ये हो जाएगा कि पीपल who face problems and who are already taking solutions in some way or the other. So these are my early adopters, right? So ये मेरा अभी का सर्विसेबल मार्केट है, एंड जैसे जैसे मैं मार्केट में जाऊंगा और अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, लोगों को और बताऊंगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, सो मेरा धीरे धीरे मार्केट एक्सपैंड होते जाएगा, ये हो जाएगा, एंड इट विल ऑलवेज बी, माई सैम विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ टैम, एंड टैम विल True. ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन और इंटायर पीपल हु इज लिविंग out there. तो वो एक्सरसाइज इज अ वेरी डिटेल्ड एक्सरसाइज, एंड दोज पैरामीटर्स, दोज फिल्टर्स विल चेंज फ्रॉम businesses to businesses, Right. and the way you look at it will also change from scenarios to scenarios. That's true. That's very true. But I just wanted people to understand how does a person from IIT and a present entrepreneur think about these things, and because a lot of people go around oversimplifying TAM, Right. and a lot of people, I've seen them make this mistake where they just किसी भी आप SaaS, most SaaS companies को आप उठा के देखोगे, उनसे आप उनकी मार्केट पूछोगे तो वो बोलेंगे SMBs. SMBs is not a TAM. SMB उनको पता भी नहीं होगा कितने SMBs हैं, तो but that's not a TAM. That's a segment of the market that you want to target. But वो टारगेट कर पाओगे तो जिसको हम टारगेट कर पाओगे वही तो आपका टैम हुआ. आप कर ही नहीं पाओगे उनको टारगेट, तो आपका टैम कैसे होगा? बिल्कुल। But yeah, but I would like to like just cover the story of your how you got into MyHQ, because I think MyHQ has like developed more entrepreneurs than I think any other company that I've worked for. जहाँ जो भी वहाँ से निकला अपनी कंपनी खोल के निकला या कुछ और कर रहा है. केशव हो गया, केशव ने अभी पिछले पॉडकास्ट, जो हमने फर्स्ट पॉडकास्ट लॉन्च किया था उसमें बताया था कि फ्राइडे को केशव की इंटर्नशिप खत्म हुई है यहाँ पे, और मंडे को उसके पास एज एन इंटर्नशिप, और फिर वहाँ पे मंडे को उसके बाद खुद इंटर्न था अपनी कंपनी में. तो इतने क्विक ट्रांजेक्शंस भी हैं विच आई थिंक इज़ वेरी फनी. बट MyHQ इज डूइंग समथिंग राइट इन टर्म्स ऑफ like enlightening the spirit of entrepreneurship. Even Simir, जो एक और Right. इंटर्न था पेक से, वो Right. भी अपना काम कर रहा है. So like a lot of people, including myself and now Mukesh, have and you of course have ventured into. Sumesh ventured into multiple entrepreneurship ventures, and now he's, I think, Ojoy or Jolly. Bundle Joy. Jolly, हाँ, it has been rebranded as Jolly. हाँ, तो अब वो उसमें कर रहे हैं. तो how was your experience? Like, how did you get in find about MyHQ? What stage did you enter MyHQ at, and where did you leave it? So it's an interesting story. So basically, when I moved out of Runabee, and once I was done with my struggle to get my degree on time, right? So, and as I said, IIT में हमने वो deferred placement के लिए अप्लाई कर दिया था. अब वो चीज़ें था, आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को धंधा ही बनाना है, ठीक है, ये चीज़ें करना है, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर, घर वाले भी होते हैं, तुमको लगता है कि तुम्हें, एंड आई डिड नॉट हैव एनी जॉब, राइट, और मेरे को वो 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए वापस भी करने थे लोगों को. सो यू स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे करना है, ये चीज़ें करना है. सो आई सेट कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब दिसंबर में प्लेसमेंट्स आने वाला है, सो लेट मी स्टार्ट द पेपर वर्क intimated to my college saying कि I would be sitting for placements this year, and that is how when I came back from home after completing the degree, घर पे गया, 2-3 हफ्ते रहा, वापस आया, उसके बाद I started working on that. उस समय जब वो कर रहे थे, ये चीज़ें कर रहे थे, दिसंबर में प्लेसमेंट्स है, सो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि यार मेरे को कंसल्टिंग इज़ वन डोमेन जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर टू बिजनेस प्रॉब्लम समझ में आते हैं. Right. I did not want to work in analytics firm. I did not want to work in banks. So I was very particular. So मैं उसके लिए prep करने लग गया. A lot of case studies, ग्रुप्स बना लो, कॉलेज में केस प्रेप्स होते हैं, जितने भी आपके रेज्यूमे होते हैं, इफ़ योर रेज्यूमे गेट शॉर्ट लिस्टेड इन कंसल्टिंग कंपनीज, so they have buddies who come to you and they do case preps, and depending on how you perform in those, okay, has a lot of impact on whether during the final placement will they take you or not. So I used to do that. In that process, because I was free, I just had to prepare for my job. I was just shifting क्योंकि पैसे थे नहीं, चुकाने वो नहीं थे. So घर वालों को मैंने बोला कि ठीक है 6 महीने और पाल लो, दे यूज्ड टू टेल मी, एंड आई डिड नॉट, उस समय भी था कि कुछ वो था नहीं, हम घर वालों से लेते थे, कहीं रह रहे थे. उस ड्यूरेशन में क्या हो गया, माई दी थर्ड को फाउंडर एट रनबी, करण,
Karan knew another guy, Mayank, and Mayank was Utkarsh's junior and a friend. So one day they were just sitting for beer, they were discussing, and somehow my name pops up. And Utkarsh says कि भाई हम अभी मैच की start ही की है, and we need good people to come and work with us. So why don't you connect me with them? So करण ने मुझे कनेक्ट किया उत्कर्ष के साथ में. आई न्यू उत्कर्ष का नाम सुना हुआ था, बट आई डिड नॉट नो हिम पर्सनली पर से. So Utkarsh called me one fine day around August, and I think he called me to a cafe in CP. It was one of the cafes that my HQ was live in, right? So वहाँ पे गए. Utka, I still remember a very young guy in jumper pants and green t-shirt sitting in a cafe. Utkarsh and Vinayak both were there. मैं गया कैफ़े में था. इट वाज अगेन कि क्या बुला रही चीज़ है. वहाँ पे गया, बातचीत किया, 1 घंटे बातचीत किया. सो पूछा कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं. एज उत्कर्ष सेज आई ऑलवेज लुक फॉर स्टोरीज कि किसके पास, किस कैंडिडेट के पास जीवन में कुछ स्टोरी है सुनाने के लिए. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड. आई हैड अ स्टोरी एंड आई हैड माई फेयर बिट ऑफ स्ट्रगल एंड लर्निंग्स देयर. सो उत्कर्ष को था 1 घंटा हमने बात किया, चिटा नॉर्मल डिस्कशन, कोई इंटरव्यू नहीं था, कुछ नहीं. वो जस्ट डिस्कशन, क्या कर रहे हो, कैसा करने का सोच रहे हो, क्या कर रहे हो. एंड देन उत्कर्ष से कि आ जाओ काम कर लो, कल से आ जाओ. मेरे को जॉब प्रेप करना था. आई स्टिल हैड टाइम. सो आई सेड ओके, let me do an internship with you. So I started working with Utkarsh, and he said कि तेरा क्या खर्चा पानी, what I can ensure, I cannot give you money, but what I can pay you enough so that जो तुम्हारी बेसिक नीड्स है कि रेंट है, आना जाना, खाना पीना है, वो कवर हो जाए. सो आई टोल्ड हिम कि यार 20-25 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है, सब कुछ रहने में. गुड़गांव में रह रहा हूँ, सो दैट इज़, एंड आई एम ऑल्सो नॉट ऑप्टिमाइजिंग फॉर इट राइट नाउ. आई जस्ट वॉन्ट माई बेसिक सर्वाइवल टू बी मेट. सो बोला ठीक है आ जाओ. सो दैट इज़, एंड ही सेड कि क्या क्या काम कर सकता है. मैंने बोला मेरे को डिज़ाइनिंग भी आती है, मैं फोटोशॉप भी करता हूँ, ये सब काम भी किया, ये सब चीज़ें किया. एंड आई टोल्ड हिम कि भाई मैं फोटोशॉप मत करवाना मेरे से, मतलब मैं आता, मतलब इसका मतलब नहीं कि मेरे से करवाओगे. ही सेड हाँ नहीं करवाएंगे, ये चीज़ें करेंगे, वो करेंगे. सो आई जॉइन देम. सितंबर था, सितंबर में आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम. ठीक है, इंटर्नशिप की तरह ही है. 1 महीना वहाँ पे किया, ये चीज़ें किया. एंड जो उसने बोला था पूरा 1 महीना सिर्फ डिज़ाइनिंग करता हूँ. ठीक है, मैंने उसको बोला मैं आपको एक चीज़ बोला था मैं नहीं करूँगा, आप वही करवा रहे हो. चाहे वेबसाइट बनाना है, ऐप के डिज़ाइन करना, जितना भी मुझे आता है बेसिक सा वो करने पे, जितने भी पैम्फलेट्स बनाने हैं, टेबल टॉप्स बनाने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं, वो सब किया. एंड देन उस, क्योंकि आई वॉज वर्किंग, सो वो एक होता है कि कहीं भी काम कर रहे हो, सो हमेशा देयर इज़ वन थिंग दैट आई ट्राई टू डू और मेक श्योर कि दैट आई डू इट एट माई एंड, इसकी सामने वाला मेरे को आके नहीं बोला कि भाई तूने काट दिया, तू मेहनत नहीं कर रहा है. चीज़ें हो नहीं हो, बट एटलीस्ट मेरा इंटेंट एंड मेरा एफर्ट सामने वाले को दिखना चाहिए कि दैट पर्सन इज जेन्युइनली ट्राइंग टू डू दिस एंड ट्राइंग टू गिव हिज बेस्ट, राइट. तो वो कर रहा था. इट ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग टाइम, एंड पैरेलली क्योंकि जॉब में भी बैठना था, सो मेरे डबल डाउट्स आने लग गए कि यार मैं यहाँ पे तो समय दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इसके कारण, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जो एक दूसरा पिक्चर है उसको लूज आउट कर दूँ. सो आई टोल्ड उत्कर्ष कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, आई नीड अ ब्रेक. मैं सितंबर मैंने इंटर्नशिप किया, एंड देन आई टोल्ड हिम कि आई विल टेक अ ब्रेक, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर माय प्लेसमेंट, आई विल डू दैट. सो बोला क्यों कर ले ऐसे करके, उत्कर्ष बीइंग उत्कर्ष, राइट. सो ही ट्राइड टू कन्विंस मी, बट देन आई टोल्ड हिम कैसे नहीं. देन ही सेड कि भाई जब करोगे, जब भी वापस आना होगा कर ले, बैठ जा, बट आई वुड से कि आके काम कर लेना, आई वुड बी हैप्पी टू हैव यू फुल टाइम करके. सो आई वेंट, उसको छोड़ दिया. फिर उसके बाद मैंने प्रेप किया. प्लेसमेंट्स में आई हैड शॉर्टलिस्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ गुड कंसल्टिंग फर्म्स. डे 1 डे 2 था, बैठा. अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ इट डिड नॉट वर्क और इट डिड नॉट मटेरियलाइज. सो सेकेंड डे के एंड पे आई ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेसमेंट. आई सेड कि अब नहीं बैठूंगा, जो भी 4-5 कंपनी में बैठना था उसमें नहीं हुआ, दैट इज़ फाइन, आई डोंट वांट टू गो. I moved out, and then and Utkarsh, then I was at Kava one day in SDA market, and Utkarsh met, बोला क्या हुआ, मैं बोला इसमें तो नहीं हुआ, बोला बहुत बढ़िया. I told him कि भाई कैसे sadistic आदमी हो, taking pleasure है, बोला उत्कर्ष ने गुड़िया बना के सुई चुमा. But that is how then he said कि I was still figuring out. मेरे को ये भी realize हो गया था, I need to learn, right. I want to do something of my, but I think it is important for me to also learn. And उत्कर्ष के आ जाओ, then I thought कि ठीक है, मेरे को कोई काम सिखाने के लिए पैसे दे रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, Right. ठीक है. I did not see it कि मैं उसके लिए काम कर रहा है, see कि कोई मेरे को धंधा चलाना सिखा रहा है and पैसे भी दे रहा है. So why not give it a shot. So that is how MyHQ started. I joined MyHQ on 2nd of January 2017. काम किया. आई वॉज द, आई थिंक एक बंदी थी इन द टेक, एंड देन आई वॉज द फर्स्ट पर्सन
टू जॉइन, एंड वो बंदी फिर मेरे जॉइन करने के 1 महीने में छोड़ दी, तो आई टिपिकली आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन उत्कर्ष। कॉलेज के सीनियर्स थे, क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे, पता नहीं, कोई बिलीव नहीं था ये चलेगा नहीं चलेगा। आई जस्ट वाज सेइंग कि लोग अच्छे हैं, स्मार्ट लोग हैं, तो इनसे सीखने को मिल जाएगा, एंड दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई वाज ऑप्टिमाइजिंग। पैसे में भी कुछ नहीं, बेसिक बेयर मिनिमम जितने एंड्स मीट हो सकते हैं उतनी चीज़ें चल रही थी, एंड आई वाज नॉट ऑप्टिमाइजिंग फॉर दैट। तो उस तरीके से माई HQ स्टार्ट हुआ, एंड earlier the plan was कि I will be at my HQ for close to a year and a half, just get a and then maybe move away, and eventually वो 1 डेढ़ साल 4 साल में कन्वर्ट हो गया। So उस तरीके से my HQ स्टार्ट हुआ। During those initial days I used to get around 40-50K as salary in the account। तो जो 6 महीना, because I had 7-8 लाख का लोन, तो उस समय प्रेशर भी आने लगा, क्योंकि उस जिसने भी वो पैसा दिया था उसके घर में भी पता चल गया, बिकॉज इट वाज मोर एज अ फ्रेंडली जेस्चर कि चल तुम स्ट्रगल में हो, बट यू हैड टू गिव। उसके बाद टाइम भी हो गया था, सो वो कैसा था। आई तो वो जो 6 महीना था, 6 महीना में आए, मेरे कुछ दोस्त थे जो 5 ईयर प्रोग्राम में थे, IT मिनिस्ट्री में थे, वरुण सोगानी वाज वन ऑफ देम। सो 2 दिन मैं उनके साथ रुकता था, 2 दिन मेरे और दोस्त थे जिन्होंने PG ले रखा था, 2 दिन उनके साथ रहता था, 3 दिन मैं अपनी बैक देन जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ रहता, शी इज़ माई वाइफ राइट नाउ, सो मैं उसके साथ रहता था। एंड नॉर्मल ट्रैवल ब्रदर्स, आई डिड नॉट रेंट एनी प्लेस, आई यूज टू जस्ट हॉप ऑन प्लेसेस, एंड वट एवर Couch सैलरी, surfing. हाँ, एंड वट एवर सैलरी आई यूज टू गेट, immediately within 5 minutes 10 minutes I used to transfer that 50,000 rupees to the person who I was supposed to pay for। तो वो 3-4 लाख रुपए मैंने वैसे 7-8 महीने में पे किया। I borrowed 2 lakh from my girlfriend just to, because वो pressure आ गया था, I had to pay them, so वो मैंने pay करके for the next 6-7 months I paid that, and when once it was done then I rented a place, and then I started my normal life uh, as a working professional, Right. or so-called a founding team member। So that is how। कितना पेनफुल जर्नी है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। Yeah, painful है, but I think if I look back, that is what has changed me as a person, right? One thing that Runner B and that entire scenario has taught me कि मेरी life में फटनी बंद हो गई है, ठीक है? I believe कि if I can bounce off from that position in life, then I can do anything। All of these things are immaterial and very टेम्पररी इन नेचर, राइट? सो जो लाइफ में फटनी चाहिए, बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज फटती मेरी बहुत थी कि ग्रेड्स कम हो जाएंगे, क्या होगा, नौकरी नहीं लगी, ये नहीं लगी, बट दैट एक्सपीरियंस डिड नॉट materialize into something very fruitful, but eventually it's changed me as a person, right? मेरी जो लाइफ में डर थे कि क्या होगा, आई यूज टू हैव अ वेरी पेसिमिस्टिक अप्रोच इन लाइफ, तो वो माइंडसेट पूरा चेंज हो गया, एंड देन आई रियलाइज कि अगर मैं इससे बाउंस ऑफ कर सकता हूँ तो लाइफ के कोई भी सिनेरियो से बाउंस ऑफ कर सकता हूँ। एंड fortunately what I have always done is कि in my life I have not earned money, I have not earned recognition, I have not earned fame, what I have earned is people, right? I have 5, 6, 7 folks who I can always count on, and no matter what happens to me in life, with one phone call all of them will be there in half an hour time, and I think that is very valuable for me। Your network, you can just build again and again from scratch if you have the right support system, and I think that is what the entire journey has taught me। ये यार मैंने बहुत कम देखा है कि लोग फाउंडर मतलब जिस टीम में काम करते हैं मतलब दे स्पीक सो हाईली ऑफ यू। जैसे जब तू उत्कर्ष की बात करता है यू ऑल मतलब यू स्पीक सो हाईली ऑफ यू ऑफ हिम एंड यू आर डूइंग द सेम। आई डू इट फॉर विनायक मतलब जो जिनको Right। मैं जानता हूँ और व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब तो उसके बाद से जितना मैं वो करता था कि भाई काम करना है तो यहीं करना है, बहुत बढ़िया जगह, ये बहुत रेयरली देखने को Yeah, मिलता यही है। है, and I think this is important, this is what I tell my team members who I hire, right? मैं बोलता हूँ कि देख, आज के डेट में वैल्यू क्रिएशन has to happen at both the ends, right? You are creating some value for me and I am creating some value for you, and that is why this relationship is working। The moment any of this value goes away, this relationship will not work। So आज के डेट में when you are coming here, माई वैल्यूज, आई नीड गुड पीपल हु कैन बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। आज मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा, वॉट आई कैन टेल यू, आई कैन हेल्प यू ग्रो, आई कैन हेल्प यू अचीव ग्रेट, लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारे बेसिक नीड्स आज कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म वैल्यू जो है, तुम्हें ये देखना चाहिए कि आज तुम जो काम करने जा रहे हो, क्या वो काम चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो क्या तुम्हारी वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, एंड क्या तुम्हारे बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहे हैं। इफ द कंपनी ग्रोज, राइट, giving you back in terms of monetary and also in terms of growth perspective is my job description as a founder, it is not your responsibility, and I will make sure that I do everything in my capacity to fulfill that। I will never
आई विल जस्ट बिकॉज यू हेल्प मी, बिकॉज लोग क्या बोलते हैं कि भाई तुमको काम करना ही है, ये चीज़ है, बट दैट पर्सन इफ ही इज गिविंग हिज क्रूशियल टाइम, राइट, जो उसका बहुत ही क्रूशियल फेज गोल्डन ऑफ लाइफ है, पीरियड है वो। गोल्डन पीरियड, अगर वो मेरे को दे रहा है, आई कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई रीपे हिम फॉर द सैक्रिफाइसेस ही मेड टू मी एंड बिलीव्ड इन मी, बिकॉज आज कोई मेरे लिए काम करने भी जा रहा है, वो कन्विक्शन नहीं है, जैसे ये बोलता है कि स्टार्टअप कभी भी बंद हो सकता है, मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई 6 महीने बाद भी बंद हो सकता है, दिस इज द है, एंड आई कीप एवरीथिंग वेरी ट्रांसपेरेंट कि दिस इज हाउ द बैलेंस लुक्स लाइक, दिस इज हाउ दिस मच कैपिटल दैट आई हैव, दीज आर द प्रॉब्लम दैट आई फेस, वो है। दूसरी चीज़ व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू डू इज कि आज वो बंदा, भले देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माई कंपनी जो वर्कआउट नहीं हो पाया इन टर्म्स ऑफ कि जो करना चाहते हैं, जो हमें चाहिए नहीं कर पाया, बट आई ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर वॉज कि दो चीज़ें, ए मैं उसको अपनी पूरी नॉलेज पूरा ये दे सकूं, ये चीज़ें कर सकूं कि कल के डेट में वो कहीं भी जाए, ये जाए तो एटलीस्ट ये आदमी बोले कि कुछ सीख के आया है, Right. ठीक है, वन। बी, इवन इफ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट विद देम इन माई कंपनी, as an entrepreneur, as a leader, or as a mentor, I just ensure one thing, that I don't kill their spirit, Right. right? Because that is the worst thing that I can do as an entrepreneur to anybody who has taken that risk to work for me, because I have seen a lot of people saying कि लोग काम नहीं कर पाते, उसको बहुत humiliate करते हैं, ये चीज़ें बोलते हैं कि भाई तू ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। I try to do justice to my role as an entrepreneur, saying कि boss, दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ये नहीं हो पा रहा है, Right. दीज आर थ्री थिंग्स, दीज आर थ्री वेज जिससे तुम कर सकते हो, ये करो, कोशिश करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो आई सिट विद देम एंड टेल देम कि बॉस दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड आई डोंट वांट टू स्ट्रेस दिस, बिकॉज दैट व्हाट विल हैपन इज कि यू आर नॉट हैप्पी, बिकॉज आई विल बी आफ्टर यू कि भाई काम नहीं हो रहा है, तू खुश नहीं होगा क्योंकि तू ऑफिस आ रहा है, तेरे को बीटी हो रही है, तेरे को ये लग रहा है, तो अगर तेरे को, लेकिन मैं तेरे को डीमोटिवेट कर दूं, तेरी स्पिरिट Right. kill kar दूं, that is the worst thing that I can do, yeah. So it is better and I can help you out. Even people who I have fired in my company, I have helped them get good jobs, I have helped them give good recommendation, just on the fact saying कि because the situation or the dynamics or the environment is not such जहाँ पे वो बंदा अपना बेस्ट दे पा रहा है, does not mean कि उस बंदे के अंदर कैलिबर ही नहीं है, बस वो यहाँ पे निकल के नहीं आ पा रहा है। So that I think that is, these are two things that always I try टू मेक श्योर जब भी मैं ये करना, एंड यही चीज़ होता कि द मोमेंट यू आर एबल टू हेल्प देम, एनेबल देम, सो माई रोल एज अ फाउंडर इज नॉट टू डू दैट जॉब फॉर देम, माई रोल एज अ फाउंडर इज जस्ट टू enable them and remove all the roadblocks that can come their way to achieve that thing, be it in terms of putting them in touch with the right people who can help them, giving them access to right resources, helping them, motivate them, because criticism से किसी का कुछ अच्छा हुआ नहीं आज तक जिंदगी में, right? It can be an eye opener, but there has to be a right balance between criticism and motivation, because best लोगों का motivation से ही आ सकता है, and people have to question themselves कि भाई do I want to, because I have seen people एक महीने के फेज में पूरा ट्रांसफॉर्म हुए कि एक महीना पहले आदमी वही था, काम करने का तरीका, बट इट वाज अ माइंडसेट चेंज, Right. एंड उससे उसकी पूरी परफॉर्मेंस, पूरा ओनरशिप, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द वे दे सी वर्क, वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उस तरीके से करूँ कि कल के डेट में वो बंदा कहीं भी जाए, एटलीस्ट ये बोले कि ठीक है, दो चीज़ मैं सीख के ही आया हूँ, एंड दैट इज़ what I called my success as a mentor or as a leader in the company, because हो नहीं सकता, because it is very, life is very dynamic, right? तुम आज किसी को विजन बेच के लाते हो, तुम कंपनी लाते हो, कंपनी चलेगी नहीं, there are a lot of factors at play. Luck is one thing, your hard work, being at the right time at the right place, a lot of things you cannot do that, but क्या प्रोसेस को जस्टिफाई कर सकते हो एटलीस्ट कि उसने एक साल दिया, तो क्या were you able to add some value to their life is something that I just try to focus more on. Absolutely. बट आई फील लाइक बहुत ओवरलुक फैक्टर है कि MyHQ क्यों सक्सेसफुल इतना आज की रेट में माशाल्लाह से है और कितना सस्टेनेबली ग्रो करा है, क्योंकि वो बंजारों का घर रहा है एक टाइम पे, हर मुसीबत वाले बंदे को उसने कोना दिया है। एंड आई फील लाइक पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, पीपल डोंट रियलाइज कि इट प्लेज इनटू अकाउंट। क्योंकि मुझे, मैं किसी और की तो बात करूँगा नहीं, मैं अपनी बात करूँगा, मुझे जब कोई मतलब कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी, बिकॉज आई एम नॉट अ ग्रेजुएट, मुझे इतने आसानी से जॉब नहीं मिलती थी, बट उत्कर्ष ने भी मना कर दिया था मुझे तो जॉब के लिए। फिर मैंने उसको बोला था मुझे 2 महीने के लिए इंटर्नशिप पे रख ले, ठीक लगे तो आगे कंटिन्यू कर लेना, वरना फिर मैं अपने रास्ते तो अपने रास्ते। तो बट उसमें मैंने अपना 100% दिया। आई ऑलवेज वर्क माई एज ऑफ फॉर MyHQ एंड आई स्टिल लुक एट इट विद सम सेंस ऑफ मतलब फेमिलियरिटी, एंड मतलब आई फील लाइक कि वो काफ़ी हेल्प करता है टू गेट, अगर पैसा एक फैक्टर नहीं है ना, व्हेन यू गेटिंग पीपल, जैसे मैं उत्कर्ष ने बोला कि तेरा खर्चा निकाल दूंगा,
वैसे उस कृष्ण ने मुझे भी दिया, मेरा भी खर्चा निकल रहा था, कोई लैविश लाइफस्टाइल नहीं जिया था। तो मैं पैसों के लिए काम ही नहीं करता था, मुझे पता था ब्रेक इवन मीट हो रहा है, अब काम मैं इस बंदे के लिए करूँगा क्योंकि इसने मेरी हेल्प करी। तो वहाँ से मेरा तो मोटिवेशन वहाँ से ड्राइव हो रहा था कि इसने मुझे तब हेल्प करा जब मुझे चाहिए था, अब मैं इसको हेल्प करूँगा जब इसको चाहिए। तो आई फील वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। If you give people what they want, they will try more and often than not return the favor. People try to fool people कि यार ये अगर 50 बोल रहा है ना, मैं इसको 40 देता हूँ, 40 में मान जाएगा। तुम दूसरे को काटने की नीयत से करोगे तो वो भी तुम्हें काटेगा ही। राइट। वही है कि वैल्यू क्रिएशन हैज़ टू हैपन बोथ द एंड्स। कोई किसी के लिए फेवर नहीं कर रहा। आज मेरी जो टीम मेंबर्स हैं मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए क्या, हम सब साथ काम कर रहे हैं, देन नॉट, आई कैन नॉट टेक इट एज अ फेवर कि Right. भाई उनको तो करना ही था, उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल Exactly. गया। इट इज़ अ वैल्यू क्रिएशन। वो भी कुछ लाइफ में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो भी कुछ चीज़ टेबल पे ला रहे हैं तभी कर रहे हैं, और मेरे को भी कुछ लेके जाना होगा टेबल पे, तभी ये चीज़ लॉन्ग टर्म चल सकती है। It's paid help. It's not paid ownership. हम्म। People don't understand that difference. और दूसरी चीज़ ये बोलनी थी कि मैं तो तब ज्वाइन किया था माइच के जब 2 साल हो चुके थे नितिन को ऑलरेडी उस कंपनी में। तो मैंने नितिन को तो उस स्टेज पे देखा था जब कुछ भी हो जाए तो कोई बात नहीं हो जाए, मैंने स्ट्रेस में देखा ही नहीं था नितिन को। स्ट्रेस का है, मतलब स्ट्रेस पे भी इंटरेस्टिंग है, जैसे एंड बहुत लेटली मेरे को रियलाइज हुआ है, एंड आई हैव ऑलवेज डन एवरीथिंग जस्ट टू एंश्योर दैट कि फॉर मी हैप्पीनेस एंड पीस, I have realized that it is the only sustainable state that I can live my life with, right? And ये realization MyHQ से when I moved out of MyHQ, वो जो 6 महीने का जो phase था, when before Pawan and after MyHQ जो 6 महीने का, it was kind of stressful phase for me because family कुछ चीज़ें कर रहा था, and professional life में भी there was something we were trying to build, वहाँ पे workout नहीं किया, there was some differences between the three of our friends who were trying to build, तो वो बहुत stressful phase था, and वो ऐसा phase था कि you could just feel it, you can just feel your blood burning inside you, right? Taking a toll on your mental health, taking a toll on your mental इन जनरल हैप्पीनेस, क्या चल रहा नहीं चल रहा है, तो वेरी वेरी बैड फेज उस समय। देन आई टुक अ ब्रेक, आई वेंट टू होम, वहाँ पे सब कुछ छोड़ के इन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट नथिंगनेस, राइट? कुछ नहीं है, उठना है, दोस्त बोलते चलो, चले गए, आए 1 घंटे बाद फिर से बोलते फिर चलो, फिर चले गए। सो नॉट थिंकिंग कि क्या करना है लाइफ में, और जस्ट बीइंग एट पीस, एट चिल। आई थिंक that was a big realization for me that happiness is the only sustainable state, and that is what I have tried to do at Pawan as well. If you look my journey in the last 15 months, 18 months as an entrepreneur, as a founder of Pawan, things have not, there are a lot of things that have gone south, right? बहुत struggles है, ये चीज़ें है, day in and day out बहुत ही बीटी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट आई स्लीप पीसफुली एट नाइट, आई स्लीप लाइक अ बेबी। मतलब लिटरली आई व्हेन आई गो होम, आई एंश्योर कि मेरे इस प्रेशर का घर पे कहीं नहीं निकले। आई हैव नेवर लॉस्ट कूल at my personal space, lashed out on people just because of something bad that is happening at work. I sleep peacefully. रात में सोता तो मेरे को सपने बुरे नहीं आते वो चीज़ आते, because I know कि ये तो होगा ही। I know I have signed up for this कि things will go wrong, but I cannot start impacting me on day to day basis. तो वो जो happiness है and जो stress free situation है कि you don't let it impact you and change you as a person is, I think, is the most important aspect. And आज की डेट में आई हैव चेंज एज अ पर्सन कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, ना मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है? अब स्पिरिचुअली इट इज़ अ वेरी गुड स्टेट, वो समान भाव रखना कि सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना, इट इज़ अ कोर स्पिरिचुअल state that you should ideally try to achieve, right? But I don't know it is that, or I have reached a no fucks given wale attitude pe, but it is working out for me. At least it keeps me sane every day, and I think I try to just pass this on to everybody. जब मैं जो लोग मेरी टीम में काम नहीं करते उनके साथ वर्कआउट भी नहीं करता, when I tell them कि यार बॉस दिस इज नॉट वर्किंग आउट, I try to give this same कि भाई ये मत सोच कि don't try to question it yourself, इंट्रोस्पेक्ट कर कि what are things you could have done differently, but इसके लिए स्ट्रेस मत ले, because वो चीज़ से बाकी चीज़ें भी खराब ही होगी। इट विल ऑलवेज मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ सो ट्रू। लास्ट मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे, वो एक बार आपने शायद 26 जनवरी के दिन मॉल में काम किया था ना, मॉल खुलवा के MyHQ के टाइम पे, वो क्या हुआ था? यार कुछ नहीं, आई थिंक कि ये उसी समय का है जब 2017 में जब ज्वाइन किया था। काम करना है, हमेशा से वो था कि हाँ कुछ भी हो जाए, जब है काम है, छुट्टी उट्टी तो क्या, जब वो काम है। तो 26 जनवरी के दिन था,
तो हम लोग 4 या 5 लोग थे, उत्कर्ष थे, विनायक थे, मैं था, आई थिंक अक्षिना थी एंड देयर वाज वन मोर गाय। सो हम लोग 5-6 लोग थे, तो हम लोग बोले, ठीक है 26 जनवरी है, छुट्टी होता है, ये चीज़ होता है कि हम काम करेंगे। सो वी वर देन वर्किंग आउट ऑफ एन इन्वेस्टर्स ऑफिस इन साकेत कौन साकेत थे मॉल में। इन्वेस्टर? या आई थिंक TCNS क्लोथिंग करके अंगद वाज एन इन्वेस्टर इन ये माई सेलिब्रेशन गार्डन वाले? नहीं, सेलिब्रेशन गार्डन में ना, आई थिंक ही comes from a family who runs TCNS Clothing, who is the parent company of W, वो वेस्ट W for women वाला अच्छा जो या वो अच्छा है अच्छा, ओके है ना, ओके। तो आई थिंक उसके था, तो उनका ऑफिस था, तो वी यूज टू वर्क आउट ऑफ कैफेज, बट वेन एवर वी वांटेड टू एक्सटेंड आवर वर्क आवर्स और वर्क ऑन द वीकेंड, जब कैफे ही होता है तो हम उनके ऑफिस से काम करते। तो वहाँ पे गए, हमें पता चला कि यार ऑफिस तो बंद है आज 26 जनवरी, हमें पता ही नहीं था कि ऐसे मॉल्स पे बंद होता है, अलाउड नहीं होता है। देन वी कॉल्ड द इन्वेस्टर कि भाई खुलवा दो, ये कर दो, वो बातचीत करके फिर वी वर्क दैट डे। अश्नीर ग्रोवर भी माइच में इन्वेस्टेड थे ना? यार आई थिंक सो, आगे के राउंड्स में आए थे, हाँ हाँ अच्छा, पहले नहीं थे? पहले नहीं थे। ओके। वो जब हम पंचशील पार्क में, जब हमारा ऑफिस था, उस समय जो हम राउंड रेस कर रहे थे, आई थिंक उस समय माइचक्यू तो में उन्होंने अश्विन पड़ोसी होने के लिए दे दिया होगा, ही लिव्स इन पंचशील ओनली। हो सकता है। तो नहीं बट इट्स अ जेन्युइन बिजनेस, आई एम जस्ट किडिंग। तो पहले दो इन्वेस्टर्स कौन थे? एक तो अंगद हो गए क्योंकि एंजल अंगद इन्वेस्ट। एंड नीरज, स्पिनी फाउंडर। ओके अच्छा, जो आईआईटी के फाउंडर्स में इन्वेस्ट करते रहते थे वो। हाँ वो स्पिनी के हाँ फाउंडर। स्पिनी का अच्छा, नीरज। आई थॉट दैट वाज अश्नीर ग्रोवर। I think that was the first, and the second round when they raised, I think then they raised it from a couple of angel networks, Let's Venture, and a lot of हाँ angel हाँ investors. I हाँ, think उस समय था, अब I'm forgetting किस समय कौन आया था। right right. So but finally, what is the top 3 advice that you would like to give to anyone watching our podcast on entrepreneurship, on cracking IIT, or just living life peacefully? Yeah, living life, सबसे पहला चीज़ है be happy, be satisfied, because nothing will ever make more sense. Even if you are able to get a lot of money, become more successful in life, and if you don't have this, everything will fall apart, right? So I think chasing happiness and a constant state of satisfaction is, I think, one thing which is absolutely necessary. Enjoying whatever you're doing, right? And enjoying the process rather than the outcome, जो कर्म करो फल की इच्छा ना करो वाला जो belief है, being, that is one thing. The second thing I think is a sheer hunger, conviction to do anything in life, because the basic prerequisite to achieve anything in life is sheer hunger, right? So staying hungry is, I think, is very important, right? And the third thing is uh, मतलब surrounding yourself with good people, right? I think surrounding with you and building good bonds that you can always cherish and always can fall back on. I think that is very important, because that can take you places, that can keep your relationships are very important in life, right? Because it keeps you sane. If your relationships are not good, your all aspects of life will start getting impacted. So build getting good people, surrounding yourself with good people who can you can always count on. I think that is very important. आई थिंक आपके थर्ड एडवाइस के थ्रू मैंने मतलब सूडो आईआईटी का डिप्लोमा कर लिया 4 लोगों के साथ रह रह के आईआईटी के। बट या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड इट वाज रियली ग्रेट स्पीकिंग विद यू, एंड वी होप टू सी यू अगेन इंशाल्लाह एंड टॉकिंग अबाउट another stage of Pawan very soon. Thanks man, my And pleasure.